Good afternoon, everyone. This is Rupsha Ahmed, Executive Member at Legal Vidya, and I am delighted to welcome you all to our live webinar on culpable homicide and murder under BNS, A Bird's Eye View. About Legal Vidya. Established in 2021, Legal Vidya is a pioneering online edtech platform dedicated to nurturing legal education. We offer a wide range of opportunities from internships, webinars, and workshops to courses and article publications, fostering a vibrant community of legal learning and discourse. About today's topic, this session is specially curated for law students, judicial aspirants, and legal professionals who wish to deepen their understanding of criminal law under the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. We'll be exploring the provisions relating to culpable homicide and murder, their definitions, distinctions, and interpretations under BNS, along with important case laws and statutory changes from the IPC. The discussion will also cover practical implications in litigation, tips for competitive exams, and how these provisions fit within the principles of criminal jurisprudence and justice delivery. By the end, you will have a sharper grasp of the key elements, exceptions, and judicial insights that shape this crucial area of criminal law. About the speaker, we are honored to have with us Mr. Gautam, Assistant Professor at the Faculty of Law, United University Prayagraj, with over 2.5 years of impactful teaching experience. Specializing in criminology with a focus on criminal justice and constitutional frameworks, he teaches core subjects like law of crimes, human rights, and constitutional law. Mr. Jaiswal's interactive real world approach has inspired many budding legal minds. His research spans criminal law, constitutional safeguards, and human rights, and he has presented at multiple national and international seminars, most recently at the International Seminar on Disability Rights and the Constitution, where his work earned wide appreciation for its depth and originality. We encourage you to engage actively and make the most of this learning opportunity. Now, without further ado, I invite Mr. Gautam Jaiswal to take over the session and guide us to today's topic. Thank you, Ms. Ruksha. Is my voice audible? Yes, sir. Yes, and the PPT is visible? Yes, sir, it's visible. Okay, thank you. So I'll just start with the webinar, but before just a second, I'll just make some changes. So it's completely visible, right? As well as the sound is also perfect? Yes, sir. Okay, so good evening, everyone. It gives me a great pleasure to welcome you all to today's webinar. I'm Mr. Gautam Jaiswal, currently working as an assistant professor in United University, Prayagraj. So in this particular session, we'll take a focused look at one of the most important and nuanced area of criminal law, and we'll explore that what is the fine line between the offense of culpable homicide and murder that has been provided under the Bharatiya Nyaya Sanhita. And this particular session will be essential for both for the academic study and for the practical application of it. And I'll make sure by the very end you'll see that law not just in theory but in practicality. So just let's dive deep into this particular webinar. So I'll just keep this session in bilingual format so as to ensure the clarity, better understanding for all the participants. Will it be fine by all? So I'll just so I'll just keep it in a bilingual format. Okay. So before that, as I can see, there are a lot of participants. So there might be many participants who haven't started with their BNS journey in their law schools till now. So I'll just give you a brief introduction how the modern criminal law works, and it works on the very basic principle that is actus non fecit reum nisi mensit rea, which is a Latin maxim, and an act which basically says that an act does not make a person guilty until and unless he is also having a guilty mind. And this is the very fundamental principle of criminal law. So these are the two essentials which is required basically to make any person liable under criminal law. These are the two very essentials. The first is
the actus reus. What is this actus reus? Is that it is the human conduct, and to be very specific, it is the basically the consequence of human conduct, which is forbidden by law. The reus here suggests something which is forbidden by law. So actus is something that is the consequence of a human conduct which is forbidden by law. So I'll just explain in a little detail. Uh, See, actus reus जो है, that is a subjective concept, isn't it? Every sections are having different actus rea. Since हम लोग पढ़ रहे हैं, that is the murder and culpable homicide, इसका actus rea will always be death. If a person tried to kill someone and that person is not killed, then since the yes, is there some issue? No, sir. It is a mens rea or actus rea. Actus rea. Okay. Okay, I'm just telling the actus rea at the moment. See, what I'm saying is that the actus rea is something which is the consequence of your human conduct, and that consequence is being forbidden by law, isn't it? For instance, when we'll see actus rea for theft, it is nothing but it is moving of property there. Okay. So actus rea is also a subjective concept. Subjective concept means that it differs from section to section. Every sections are having their own actus reus. And for the purpose of culpable homicide and murder, the actus rea will always be death. Until and unless the death is caused, you cannot proceed with the application of these two sections. Next is mens rea. What is this mens rea? Mens rea is basically the state of mind. When you were committing, जब आप कोई crime कर रहे थे, what was the state of mind? And that can also be further bifurcated into intention, knowledge, and reason to believe. So there is a different, these are different degree of mens rea. Intention, we always keep it as a highest degree of mens rea. Intention को माना जाता है कि it is the highest degree of mens rea है. Knowledge, it is a little below the intention. So basically ये डिग्री का फर्क है, बट बेसिकली जब भी आप कोई क्राइम करते हो तो इन दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है. अ पर्सन कोई क्राइम करता है विदाउट द एब्सेंट ऑफ वन ऑफ दिस एसेंशियल एलिमेंट विल नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस बेसिकली. सो एनी ऑफेंस व्हिच विल बी कमिटेड शुड हैव दीस two essentials, that is the consequence of for instance, I'll take an example for actus reus. For example, I stabbed someone on the chest. Fine, my act of stabbing someone on the chest, and the conclusion will be his death, isn't it? So that's what I'm saying. The actus reus is the conclusion of the human conduct. So the conclusion is the death. So that is the actus reus, which is necessary for both culpable homicide and murder. Mens rea, we should know that there is intention and knowledge. We are stick to these two because that these two are required when it comes to these both offenses. So intention क्या है? See, intention is nothing. Intention मतलब हो गया desire. आपको एक particular conclusion चाहिए था and for a particular consequence चाहिए था, and for that particular consequence you had made some efforts. You will be doing some efforts so that that particular consequence can be achieved. That is your desire. You want that this particular thing will happen, and for achieving that you will be making efforts, and that will not be an casual efforts. That will be a efforts so as to achieve that particular consequences. That is nothing but desire. That is intention. The other is knowledge. Knowledge is awareness. Basically, it is the awareness. You are having the awareness that this thing will happen. I'll just take an example for intention. For example, you gave someone 20 lathi blows on the head, 20 stick blows on the head. So if you are giving someone 20 stick blows on the head, that shows that you were having intention because you wanted his death. That's why, to make sure that death will occur, you kept on beating on his head. And that too on the very vital organ, that is that too in the very vital part of the body, that is the brain. So that will be an example for intention. Whereas knowledge, for instance, 2, 3, 4 people are standing here next to me. What I did was, I just, without pointing anybody, I just shot in that particular direction without pointing to someone in that direction. So that is knowledge, because I know that people are present there, and my very act, I was aware about their presence.
So my very act can kill someone. That can be given as an example for knowledge, which falls under mens rea. I hope this is why I have just gone through it, because many of the participants might not have done with their VNS till now. So as to just give them a brief introduction, as well as those who are already there, so as to just refresh them. So what is the difference between intention and motive? See, I'll do one thing. I'll just take the questions at last, fine. Or else, what will happen is that it will totally become into a question answer session. I'll definitely take your queries in the last, fine. Okay, sir. I'll definitely take it. No worries. I'll be sharing my email ID as well. In case you'll be having any detailed query, I'll definitely would like to answer that. So next we'll go into. So now we will be bifurcating. We'll see a larger picture of it. अब देखिए first death. अब देखो death can be, let's have a bifurcation of it. Death can also be a suicide. Death can be caused by suicide. Suicide मतलब क्या हो गया? That is self-killing. On the other hand, there can be homicide. Homicide is killing of a person by another person, killing of a human being by another human being. ठीक है? अब homicide में भी we have two things, that is lawful homicide and unlawful homicide. ठीक है? अब lawful homicide में यहाँ पे क्या आएगा? Lawful homicide में homicide means killing, isn't it? तो lawful homicide means वो सारी killings जहाँ पे आप justified थे killings करने के लिए. अब जैसे अगर आपने आईपीसी या फिर बीएनएस ऑब्वियसली अगर पढ़ा है, तो आपने देखा होगा कि देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड जनरल एक्सेप्शंस. अब जनरल एक्सेप्शंस के अंदर अगर आपने किसी का डेथ कॉज किया है प्राइवेट डिफेंस से, प्राइवेट डिफेंस को अंतर्गत यूज करते हुए अगर आपने किसी का डेथ कॉज किया है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ लॉफुल किलिंग, because you have used your right to private defense if somebody was trying to transgress upon you. So that is a lawful homicide. ठीक है? On the other hand, we are having a unlawful homicide. We have to just dwell into these things. That is the unlawful homicide. Unlawful homicide where we were not having any justification of killing someone. So we are having culpable homicide and we are having murder. So culpable homicide means culpable. The word culpable basically means hota hai, that is punishable. Homicide means killing. So punishable killing, and the other is murder. So now we will be dwelling into these both of the aspects. I hope everybody is clear till now. It is just an introductory part, so as to just have you a better understanding, isn't it? So now we'll just move, because since see this topic is having a lot of technicalities, I'll just tell you. So that's why I want your utmost attention. You can just jot down your questions and I will be dealing it at the later stage, because this particular session, the time is very less and the topic is very, you can say very technical. So I just want your complete attention at the moment. Rest, we can have a conversation on the questions. Fine. So just please give your complete attention right now. So we are starting with the topic that So is. you tell us that culpable means punishable, right? Yeah. And Culpable homicide means murder. killing. Yeah. No, Okay. not murder. So There is a difference. There's not a murder. difference. Okay. Don't Killing, confuse with killing. murder. I'll tell you. Yeah. There's a very technicality involved. That's why I'm Okay. saying don't. Culpable Okay. means punishable. Homicide means Okay. killing. Those Okay. killings which are punishable is culpable homicide. Okay. Right. So first, now we'll see section 100. Section 100 we'll see. Initially in IPC, this used to be under section 299. Sir, Now- section 100 of IPC has been defined that means in the right of self-defense if you're causing a death to somebody, right? No, this is VNS. I'm talking under VNS. This section 100. But in I'm section talking. 100 of IPC, No, define this the is right section. of self-defense. So section 100 of BNS it's given. Section 100 This is of section BNS. 100 of BNS. This is not IPC. This is BNS. The sections have been, as you all know, that has been basically revamped again, isn't it? So this is section 100. Section 100. It's better if you guys can have your Bear Act also with you, so as to have a better understanding. Okay, just open your Bear Act, and that is Bharati Nyaya Sahita. Please open with yourselves. So you'll be having a better understanding what I'm planning to, because a lot of examination is required, because murder cannot be murder until unless it is being proved as a culpable homicide.
मर्डर को बनाने के लिए आपको कल्पेबल होमिसाइड में पहले प्रूव करना पड़ता है चीजें, नहीं उसके बिना आप डायरेक्ट मर्डर पे नहीं जा सकते हो, ये बहुत टेक्निकल होता है, इसलिए जस्ट वेट। तो ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में जो डिफरेंसेस है, कल्पेबल होमिसाइड भी अगर इंटेंशनली अगर आप किसी को मर्डर करना चाह रहे हैं तो उनको पनिशेबल मिलेगा, और सेम मर्डर आई मीन किल करना दैट्स चाहते हैं व्हाट तो आई एम कल्पेबल सेइंग। होमिसाइड। होता क्या है, हाँ लोगों को ये नोशन है कि कल्पेबल होमिसाइड में हाँ इंटेंशन नहीं होता, मर्डर में इंटेंशन होता है, अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब आप समझ रहे हो। ओके But the thing अच्छा is, हाँ both is having an intention. But the technicality, that's ये what I wanted to start with. If you guys allow, I'll definitely start. ओके So, ओके सर ओके no, not an कंटिन्यू issue. You can have a question. But the thing is that it will take time. So, I'll definitely open ओके the stage for the question. But ओके सर I'll just start with it now. Just a second. So, so section 100 talks about the culpable homicide basically. अब आपको एक चीज यहाँ पे, नाउ आई विल बी गोइंग इनटू द बाइलैंग्वेज लैंग्वेज बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है। आई विल नॉट बी गोइंग इनटू इंग्लिश और एल्स इफ यू मिस अ पॉइंट यू विल बी टोटली गेटिंग नो क्लू व्हाट इज हैपनिंग। ओके, अब देखिए यहाँ पे द थिंग इज, जो सेक्शन 100 है, 290 था, 299 था पहले, क्या था उसको भूल जाओ आप, अभी बीएनएस है, अभी इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सेक्शन 100 अगर आप देखोगे और अगर आप देखो तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। जो रेड मैंने किया है दैट इज द फर्स्ट पार्ट, जो येलो किया है दैट इज द सेकंड पार्ट, जो ग्रीन है दैट इज द थर्ड पार्ट। इसको पार्ट्स बोला जाता है, इसको जनरली अगर आप देखोगे एडवोकेट्स एंड ऑल दे यूजुअली एड्रेस दिस एज अ पार्ट्स, ठीक है। अब कह रहा है whosoever causes death by doing an act with the intention of causing death, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ से अगर कोई आप कार्य करते हो, या फिर आप इंटेंशन है किसी को ऐसी बॉडीली इंजरी देने की जिससे कि डेथ कॉज हो सकती है, या फिर आपके पास नॉलेज था कि आपका की डेथ कॉज हो सकता है। सो अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो, पार्ट 1 में अगर आप देखोगे, पार्ट 1 मतलब जो रेड वाला है, ठीक है, देयर द मेंसरिया इज व्हाट, मेंसरिया इज इंटेंशन। पार्ट 2 में क्या मेंसरिया है, पार्ट 2 में भी मेंसरिया इंटेंशन है। पार्ट 3 में इट इज नॉलेज, ठीक है। 3 मेंसरिया है। एक्टिस रिया इसका क्या है, एक्टिस रिया हमेशा डेथ होना चाहिए, बिना डेथ किसी के डेथ के आप कल्पेबल होमिसाइड लगा ही नहीं सकते ना, डेथ होना जरूरी है, ठीक है। तो 3 अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक तरीके से 2 है, 2 मेंसरिया है, दैट इज इंटेंशन एंड नॉलेज। बट पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या डिफरेंस है, पार्ट 1 कहता है कि आप कोई भी ऐसा कार्य करते हो जिससे आपका इंटेंशन था सामने वाले का क्या कॉज करना, डेथ कॉज करना। और दूसरे पार्ट में कह रहा है इंटेंशन है बॉडीली इंजरी कॉज करने की, जिससे शायद डेथ लाइकली, कह रहा है लाइकली, डिग्री का फर्क है, लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब डेथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ये बेसिकली कह रहा है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि क्या इट इज टेलिंग। देखिए, अब कोई भी किलिंग पनिशेबल नहीं होगी जब तक कि इनमें से कोई मेंसरिया नहीं होगा। No homicide is culpable until and unless it will be with I mean if it is without these mensaria, no culpable homicide will be punishable. तो अगर आपको culpable homicide में लाना है, ठीक है, punishable करना है किसी भी killing को, तो ये सारे intention के साथ ही करोगे, तभी आप culpable homicide में punishable करोगे। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो highest degree intention है, lowest degree कहाँ पे है, knowledge है। जैसे मैंने बताया आपको, intention is the highest degree, इसको ज्यादा आपको प्रूव करना पड़ता है, highest degree it is talking about, and knowledge is having a low degree involved in it, ठीक है। तो अब क्वेश्चन, I'll be explaining every part, don't worry, please be patient, बस सुनिए what I am saying is, so अब the question is कि आप कैसे ascertain करोगे कि accused का intention था कि नहीं, ठीक है। हम कैसे पता करेंगे किसी भी व्यक्ति का कि भाई अगर उसने कोई काम किया है तो उसका इंटेंशन था कि नहीं था। आप इंटेंशन अब आप देख तो सकते नहीं उसके दिमाग में, मतलब कि क्या उसका इंटेंशन था कि नहीं करने का, मगर हाँ, अगर उसने कोई कंडक्ट किया है तो उस कंडक्ट से हमें पता चल जाएगा ना, कि अगर उसने कंडक्ट किया है, किसी के सर पे ही वार किया है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसका इंटेंशन डेथ कॉज करने का था, इजंट इट। तो इंटेंशन आपको जब भी जानना है किसी चीज के लिए, तो आप उसके कंडक्ट में मैनिफेस्ट होता है, ठीक है। यू कैन नॉट वॉच इनसाइड हिज ब्रेन्स, बट यू कैन जस्ट मैनिफेस्ट इट फ्रॉम हिज वेरी कंडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे I will be giving you a lot of examples, but before that पहले आप ये समझो कि जो डेथ है,
डेथ कैन बी कॉज विथ बॉडीली इंजरी, विदाउट बॉडीली इंजरी ऑल्सो। ठीक है, डेथ दोनों तरीके से कॉज की जा सकती है। I'll just request to kindly please keep your mics off. Please request someone, sir. Please request all the students, sir. Please don't post their LinkedIn links in the chat box. Please don't post any LinkedIn links right now. We will have a question and answer session at the end of the meeting. So please be patient till then. You can ask your questions, but please don't share the LinkedIn links. Fine. So देखिए, so अब जो डेथ है, डेथ दो प्रकार से कॉज किया जा सकता है, isn't it? बॉडली इंजरी से भी कॉज किया जा सकता है, विदाउट बॉडली इंजरी से भी कॉज किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉडली इंजरी पे आते हैं। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा कि वेयर व्हेन इट कम्स टू द बॉडली इंजरी आई एम डिस्कसिंग। ठीक है, आपने किसी को शॉट किया है, ठीक है, उसके हेड पे, यू हैव शॉट समवन ऑन हिज हेड। ठीक है, और यू हैव पियर्स समवन, आपने किसी शॉट से पियर्स कर दिया किसी को उसके चेस्ट पे, या फिर आपने स्टैब कर दिया किसी को चेस्ट पे विद नाइफ। ठीक है, तो अब इन सारे अबव केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी टू है, लेकिन अगर आपने जो एक्ट किया है वो इस नेचर का है कि हम ये एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इंटेंशन टू कॉज डेथ डायरेक्टली था, क्योंकि आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए, बॉडली इंजरी आपने कॉज किया, आपको इंटेंशन था बॉडली इंजरी कॉज करने का, आपने किया, बट आपने इन अबव केसेस में जो मैंने बताया, आपने जो इंजरी कॉज किया, ठीक है, वो इस नेचर का है, या फिर वो उससे हम ये एट्रीब्यूट निकाल सकते हैं या फिर ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपका इंटेंशन सिर्फ बॉडली इंजरी करने का नहीं था, बल्कि सीधा डेथ कॉज करने का था डायरेक्टली, तभी तो आपने वाइटल ऑर्गन को टारगेट किया। अगर आप किसी के सर पे गोली मारोगे तो आपका इंटेंशन बॉडली इंजरी का थोड़ी ना रह जाएगा, अब आपका बॉडली इंजरी उसका डेथ कॉज करने का हो जाएगा, क्योंकि आप जब दैट इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी। व्हेन यू आर स्टैबिंग समवन ऑन द चेस्ट, isn't it? You are stabbing someone on the chest, आप किसी के हार्ट को पियर्स कर रहे हो, तो वहां पे आप बॉडली इंजरी का इंटेंशन नहीं रह जाएगा, that now it will become a intention to cause death directly, bodily injury with the intention to cause death directly. Similarly, अगर stab of the knife की भी बात करूं तो there also same thing will happen. तो अगर आप किसी वाइटल ऑर्गन को टारगेट करते हो तो आपका इंटेंशन बॉडली इंजरी का ना रह जाके वो डायरेक्टली क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका डायरेक्टली डेथ कॉज करने का। क्योंकि जब आप किसी को इंजर करते हो, इंजरी जब देते हो, तो दैट इज नॉट जस्ट द एक्सटर्नल इंजरी। जब अंदर स्टैब कर रहे हो आप, तो अब आप जब फ्लैश के अंदर पियर्सिंग आपने किया, पियर्स किया, तो अंदर जितने भी नर्व्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, दे ऑल विल बी डैमेज। So this will be attributed to you that you wanted to injure external as well as the internal injury also, which has been caused. So it will all be attributed to you. So अब इन सारे केसेस जो ये मैंने 3 केसेस आपको बताएं, ठीक है, फॉर इंस्टेंस, अब आप इन तीनों केसेस को इसमें डाल सकते हो कि नहीं? मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने ये आपको बताया कि भाई अगर आप किसी वाइटल ऑर्गन को टारगेट करोगे, ठीक है, आप किसी के वाइटल ऑर्गन को टारगेट करोगे, चाहे आपने इंजरी करके टारगेट किया, मैं बात कर रहा हूँ बॉडली इंजरी करके किसी का डेथ कॉज कर रहे हो, तो वाइटल इंजरी पे अगर आप वाइटल बॉडी पार्ट पे अगर आप किसी को इंजरी दे रहे हो, तो वहां पे अब वो इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी ना रह के एट्रीब्यूट हो जाएगा कि आप उसका सीधा डेथ कॉज करना चाहते हो थे। ठीक है, क्योंकि कोर्ट इन सारे चीजों में देखती है कि आपने कहाँ वार किया है, कहाँ इंजरी दी है, किस वेपन से आपने इंजरी दी है। ठीक है, तो बिना डॉक्टर्स का ओपिनियन लिया जाता है व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज। ठीक है, तो हियर द 3 एग्जांपल्स व्हिच आई हैव गिवन, कैन यू नॉट डायरेक्टली पुट इट अंडर द फर्स्ट पार्ट कि भाई वहां पे इंटेंशन था सीधा डेथ कॉज करने का। So this is what I'm saying. So the examples for the first part will be all these examples which I have given. ठीक है, सो फर्स्ट क्लॉज में जो है वो बॉडली में इंजरी अगर क्लियरली सजेस्ट कर रही है कि इंटेंशन था डेथ डायरेक्टली कॉज करने का, तो फिर वो फॉल होगा फर्स्ट। अब जैसे फॉर इंस्टेंस हम लेते हैं कि आपने किसी के सिर पे 20 हिट मारा किसी आयरन रॉड से, ठीक है, 20 ब्लोज यू हैव गिवन समवन ऑन द हेड। ठीक है, अब आप किसी के सर पे 20 बार मार रहे हो सर पे विद एन आयरन रॉड विद द फुल फोर्स, तो वहां पे आप बॉडली इंजरी देने के लिए थोड़ी ना हो, वहां पे सीधा आप चाह रहे थे डेथ कॉज हो जाए, इसलिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहे हो उसको सर पे बेसिकली मारने का,
isn't it? So this is the case when bodily, I'll tell you in future why I'm dividing this two, because it is very important to examine under clause 100. मैं भी पहुंचता हूं वहां तक. तो बॉडली इंजरी से अभी आप डेथ कॉज कर सकते हो. विदाउट बॉडली इंजरी कैसे डेथ कॉज कर सकते हो? अब विदाउट बॉडली इंजरी यू कैन कॉज डेथ, स्पेशली जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने पिलो किसी के फेस पे रख दिया और उसे बेसिकली सफोकेट टू डेथ कर दिया. यहाँ बॉडली इंजरी तो हो नहीं रही है, आप सीधा क्या कर रहे हो, पिलो से आप किसी को सफोकेट कर रहे हो. आपने किसी को रोप से स्ट्रैंगुलेट कर दिया. स्ट्रैंगुलेट बोले तो आपने किसी का दम घोट दिया किसी रोप से. अब आप ये नहीं बोल सकते कि जो यहाँ निशान पड़ा है दैट इज द इंजरी मार्क. नहीं, दैट इज नॉट इंजरी मार्क, दैट इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ इट. बट बेसिकली तो वो मरा तो सांस ना लेने से ना. ठीक है, तो स्ट्रैंगुलेशन इज ऑल्सो विदाउट बॉडली इंजरी, है ना. इट कम्स, पॉइजन आप किसी को कर दो, आपने अगर किसी को पॉइजनिंग कर दी है तो दैट इज नॉट अ केस ऑफ बॉडली इंजरी, दैट विल फॉल अंडर विदाउट बॉडली इंजरी, इजंट इट. आपने बीच समुद्र में किसी को धक्का दे दिया, हाई टाइड्स है, ठीक है, आपने किसी को धक्का दे दिया, आपने किसी को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया, उसके लंग्स में पानी भरने की वजह से दैट पर्सन हैव डाइड. दीज ऑल विल बी डेथ विदाउट बॉडली इंजरी. तो अब देखा जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को स्ट्रैंगुलेट किया रोप से, तो वहां पे आप किसी का गला घोट रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ. तो इंटेंशन ऑफ कॉज डेथ जो है, आप जब इंटेंशन है किसी का डेथ कॉज करने का, तो आप विद इंजरी भी कर सकते हो, विदाउट इंजरी भी कर सकते हो. आप मेरी बात समझ रहे हो? सो बेसिकली दिस व्हाट आई वांटेड टू बेसिकली शेयर. ठीक है, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस कि हाउ द डेथ कैन बी कॉज्ड. ठीक है, अब आते हैं फिर से फर्स्ट पार्ट पे. ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कोई भी कल को डेथ कॉज होती है, तो अकॉर्डिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, फर्स्ट आप क्या करते हो, पहले क्लॉज में एग्जामिन करते हो. ये पूरा टेक्निक है, दैट इज अ टोटल टेक्निकलिटी ऑफ दिस सेक्शन. द होल क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज बेस्ड ऑन इट. तो पहले आप क्या करते हो, फर्स्ट यू विल बी एग्जामिनिंग ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड कि क्या इंटेंशन टू कॉज डेथ था कि नहीं था. तब आप आगे बढ़ोगे. अगर ये प्रूव हो जाता है तो ठीक है, नहीं प्रूव होता है आगे बढ़ोगे. ठीक है, इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं था, तो क्या इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी था, स्पेसिफिक बॉडली इंजरी था, कि कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में आपने इंजरी प्रोवाइड किया है एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, और क्या वो सफिशिएंट है किसी की डेथ कॉज करने में, ये तो डॉक्टर ओपिनियन देता है. इज लाइकली टू कॉज डेथ जो लिखा है दैट इज बीइंग बेस्ड ऑन द डॉक्टर्स ओपिनियन. डॉक्टर के ओपिनियन पे अगर डॉक्टर कहेगा कि हाँ ये इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ, तो फिर कोर्ट मान लेगा. मान लीजिए कहता नहीं है, देन यू विल शिफ्ट टू नॉलेज. तब आप फिर नॉलेज पे आओगे कि क्या कम से कम नॉलेज तो था ना. लेकिन चलो ठीक है, इंटेंशन नहीं था, बॉडली इंजरी देने का इंटेंशन था, अगर वो भी नहीं था तो क्या नॉलेज तो एटलीस्ट था. नॉलेज तो हम कह सकते हैं था. तो आप ऐसे जब मैटर कभी भी बॉडली इंजरी का रहेगा, तो आप तीनों क्लॉज में एक बार एग्जामिन करोगे, पहला दूसरा. अभी मैं आई जस्ट टेल यू विद एन एग्जांपल, प्लीज आई जस्ट प्लीज होल्ड ऑन. ठीक है, तो पहला इंटेंशन टू कॉज डेथ आप देखोगे, फिर इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ, एंड देन यू कम टू द नॉलेज दैट इज लाइकली टू कॉज सच एज टू कॉज डेथ. अब इसका एग्जाम्पल इसको प्लीज नोट डाउन करते चलिए. फर्स्ट आपका अगर बॉडली इंजरी है, फर्स्ट क्लॉज, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट पे आप जाओगे. ठीक है, अब जैसे सपोज करिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने किसी को नाइफ से उसके चेस्ट पे मारा या फिर 20 लाठी ब्लोज दिया, तब तो वो डायरेक्टली यहीं आ जा रहा है, क्योंकि इतने वाइटल ऑर्गन पे मार रहे हो तो आपको डायरेक्टली इस पे आ जा रहा है, कोई इशू नहीं है. अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन नाइफ हो गई. पेन नाइफ इज बेसिकली अब छोटी सी होती पेन नाइफ. ठीक है, आपने किसी को पेन नाइफ से किसी को स्टैब किया, छोटी सी स्मॉल नाइफ, यू हैव स्टैब्ड समवन ऑन द स्टमक. अब जनरली अगर आप पेन नाइफ से देखो तो जनरली पेन नाइफ इज, इट कैन नॉट बी कंस्ट्रूड दैट अगर किसी ने किसी को पेन नाइफ से मारा है और उसको बाद में जाके मर गया, यू कैन नॉट कंस्टिट्यूट दैट द इंटेंशन वाज टू कॉज डेथ, है ना. इंटेंशन वाज माइट बी टू कॉज बॉडली इंजरी, है ना. तो अगर आपने किसी को स्टैब किया पेन नाइफ से, ठीक है, एंड तो आप जनरली क्लॉज 1 में उस चीज को नहीं देखोगे, बिकॉज पेन नाइफ का दिया हुआ इंजरी इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज डेथ. तो वहां पे आप इंटेंशन इसमें नहीं देखोगे. फिर आप आ जाओगे सेकंड क्लॉज में, वहां पे आप देखोगे इंटेंशन ऑफ सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ. तो आप फिर उसके बाद सेकंड में देखोगे कि क्या जो आपने इंजरी दी है पेन नाइफ से, क्या वो सफिशिएंट है डेथ कॉज करने की, एंड दैट टू यू रिक्वायर अ डॉक्टर्स ओपिनियन फॉर इट. अगर ये भी मान लीजिए डॉक्टर बोलता है कि नहीं, दैट इज नॉट अ वेरी सफिशिएंट इंजरी दैट अ डेथ कैन बी कॉज्ड,
तब आप आते हो नॉलेज में कि क्या उसको नॉलेज था कि एटलीस्ट डेथ तो कॉज हो सकता है उस एक्ट से जो उसने किया है ऑफ स्टैबिंग समवन इन द क्या कहते हैं इन द स्टमक बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड कि कब कौन से क्लॉज में कौन सा जाएगा, दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन द विच टाइप ऑफ एक्ट दैट पर्सन हैज basically committed. So doctor's opinion is very necessary when it comes to the second clause. वहां पे आपको बस ये प्रूफ करना पड़ता है कि इंटेंशन था कि नहीं बॉडी इंजरी का, ये आपको प्रूफ करना है, मगर लाइकलीहुड है डेथ कॉज होने का कि नहीं होने का वो डॉक्टर बताएगा। वो अपने बेसिकली ही विल बी डिपोजिंग बिफोर द कोर्ट दैट वेदर इट विल बी हैपनिंग और नॉट। अच्छा, मान लीजिए अगर वही पेन नाइफ से आपने किसी के चेस्ट पे वार किया, हार्ट पे वार किया, तो अब वही पेन नाइफ का एग्जाम्पल फर्स्ट में आ जाएगा ना कि सेकंड में, बिकॉज यू हैव टारगेटेड अ वाइटल पार्ट ऑफ समबडीज बॉडी। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए आपने किसी को सिंगल कट दिया, सिंगल कट विल नॉट फॉल अंडर पार्ट 1 बिकॉज सिंगल कट इज स्लैश ऑफ नाइफ होता है, सिंगल कट ऑफ नाइफ विल नॉट सफिशिएंटली कॉज डेथ ऑफ समवन, तो इट विल नॉट फॉल अंडर part 1. It can fall under part 2 or part 3. That will also be depending upon the circumstances and the doctor's opinion and rest of the things. ठीक है, तो सिंगल ब्लो में जनरली नहीं मानते हैं कि देयर वाज एन इंटेंशन, वहां माना जाता है, फिर मान लिया जाएगा कि आपको ग्रीवियस हर्ट करने का इंटेंशन था ना कि डेथ कॉज करने का। ठीक है, तो बेसिकली आप पहले बॉडली इंजरी है क्लॉज 1 में जाइए, क्लॉज 1 में देखिए कि वेदर इंटेंशन था कि नहीं था, सेकंड में आइए, सेकंड में भी नहीं हो रहा तो थर्ड पे जाइए। तो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू, यू हैव टू जस्ट एग्जामिन द एक्ट अंडर ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ इट। सो बेसिकली ये आपको देखना पड़ेगा। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट किसी भी एक्ट को सेकंड क्लॉज में लाने के लिए 2 टेस्ट बहुत जरूरी है प्रूव करना। द फर्स्ट टेस्ट, जैसे मैंने कहा कि आपको दिखाना पड़ेगा कि सेकंड में अगर किसी के भी एक्ट को आप ला रहे हो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी जो थी वो स्पेसिफिक बॉडी, मतलब पहले बात तो आपको इंटेंशन था, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा अक्यूज्ड का, और साथ ही साथ स्पेसिफिक बॉडी इंजरी देने का मतलब पर्टिकुलर बॉडी इंजरी देने का जो था इंटेंशन था कि नहीं उस पर्टिकुलर पर्सन को। ठीक है, और दूसरा जो है वो डॉक्टर्स का ओपिनियन हो गया लाइकलीहुड ऑफ इंजरी के लिए। मैं ये कह रहा हूँ आपको अगर नहीं समझ में आया है तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि फॉर ब्रिंगिंग अ मैटर अंडर क्लॉज 2 आपको 2 टेस्ट प्रूव करना है। पहला इंटेंशन होना, आपको ये प्रूव करना है कि इंटेंशन होना चाहिए था, इंटेंशन था अक्यूज्ड का कि वो पर्टिकुलर इंजरी दे, मतलब इस पार्ट पे इंजरी दे, उसका ये इंटेंशन था कि भाई मैं यहाँ इंजरी दे रहा हूँ, पर्टिकुलर पार्ट पे इंजरी या फिर स्पेसिफिक इंजरी, वो जान रहा है कि कहाँ पे इंजरी वो देना चाह रहा है, वो आपको एक चीज प्रूव करनी है। दूसरी चीज आपको लाइकलीहुड प्रूव करना है डेथ का, बेसिकली कि ये जो लाइकलीहुड जो है ये डॉक्टर प्रूव करता है, वो प्रोसिक्यूशन को नहीं प्रूव करना है, वो डॉक्टर बताएगा बेसिकली। ठीक है, अब इसका जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ले लेता हूं, तो जैसे स्पेसिफिक बॉडी इंजरी की बात कर रहे हैं, तो अब जैसे मान लीजिए आपने किसी को टेरेस से फेंक दिया, यू हैव पुश्ड समवन फ्रॉम टेरेस। ठीक है, तो अब आप किसी को अगर टेरेस से फेंकते हो तो आपको पता तो है नहीं वो ग्राउंड पे कैसे गिरने वाला है, कि अपने मुंह के बल गिरेगा, कि बैक के बल गिरेगा, कि वो अपने साइड पे गिरेगा, कि अपने पैरों के तरफ से गिरेगा, मतलब यू डोंट नो विच टाइप ऑफ इंजरीज ही विल बी और शी विल बी सस्टेनिंग व्हेन ही विल बी पुश्ड फ्रॉम द टेरेस। So अगर कल को एक केस आता है जहां पे somebody has pushed someone from the terrace, तो अब भाई होमिसाइड है, किलिंग है, ठीक है, सुसाइड तो है नहीं, किलिंग है, ठीक है, लॉफुल भी होमिसाइड नहीं है, कोई सेल्फ डिफेंस में ढकेला हो तो अलग बात है, बट यहाँ पे किसी ने ढकेल दिया, ये आपके पास एक केस आया। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे कि सबसे पहले इंटेंशन है कि नहीं, इंटेंशन था कि नहीं उस पर्सन का डेथ कॉज करने का। अब मान लो किसी ने 8 फ्लोर से फेंका है, 8th फ्लोर से किसी को फेंका है, तो वहां पे तो पूरा साफ साफ पता है कि भाई वो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ था। इतने हाइट से किसी को फेंकोगे तो वहां बॉडली इंजरी तो थोड़ी ना देने के लिए फेंकोगे, वहां से तो आप किसी को डेथ ही कॉज करने के लिए फेंक रहे होगे, तो यहाँ पे वो फर्स्ट में चला जाएगा। मान लीजिए किसी को आपने फर्स्ट फ्लोर से फेंका, 10 फीट से फेंका, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये फर्स्ट में तो नहीं प्रूव हुआ इंटेंशन, मेरा क्वेश्चन ये है क्या ये सेकंड क्लॉज में आएगा कि थर्ड क्लॉज में हम इसको देखेंगे। तो आंसर ये है कि आप सेकंड क्लॉज में नहीं देखोगे, क्योंकि सेकंड क्लॉज बात कर रहा है स्पेसिफिक बॉडली इंजरीज की। जब आप किसी को ढकेलते हो तो आपको नहीं पता होता कि उसको कौन सी इंजरी होने वाली है, तो वो फर्स्ट के बाद आप सीधा थर्ड में आ जाओगे,
because second ask for specific body injuries, क्योंकि आपको पता ही नहीं कौन सी बॉडी इंजरी सस्टेन करने वाला है वो पर्सन। तो आप फर्स्ट में देखो इंटेंशन प्रूव हो गया, वेल एंड गुड। नहीं हो पा रहा है तो थर्ड, क्योंकि अगर आपको इंटेंशन नहीं था मगर नॉलेज तो था ना, किसी को फेंक रहे हो तो मर सकता है, चाहे भले 12 फीट से ही फेंक रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ मूवी कॉल्ड जोधा अकबर, अगर आपने देखा होगा, वेयर इन अ पर्टिकुलर सीन यू कैन सी Akbar instructed his workers or his guards, basically his guards, to throw a person upside down. आप अगर आप किसी को upside down फेंकते हो, सर नीचे है और उसको ऐसे पकड़े हो दोनों पैरों से और उसको आप नीचे फेंकते हो, तो आप अब ये क्या है कि अब आप यहाँ पे स्पेसिफिक बॉडी इंजरी देना चाह रहे हो कि नहीं, क्योंकि वो सर के बल गिरेगा। तो यहाँ पे सेकंड क्लॉज में आप एक बार देख सकते हो, सेकंड क्लॉज में जाएगा ये केस, फर्स्ट में नहीं हुआ तो सेकंड क्लॉज पे जाएगा कि केस। अगर आपने किसी को 2 फीट से उल्टा करके ऐसे गिरा दिया उल्टा करके, तो 2 फीट से डेथ तो नहीं कॉज होगी, मान लीजिए अगर हो जाती है तो फर्स्ट में तो नहीं जाएगी, इंटेंशन थोड़ी ना था। सेकंड में जा सकता है, सेकंड में क्योंकि इंटेंशन है स्पेसिफिक बॉडी इंजरी, क्योंकि आपने अपसाइड डाउन करके फेंका। किसी को आपने 10 माले से फेंक दिया उल्टा करके, तब पहली बात तो वो सेकंड में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो फर्स्ट में ही आ जाएगा। आप समझ रहे हो? तो आपको बॉडी इंजरी स्पेसिफिक होनी चाहिए। आप रोड पे कोई आदमी लेटा हुआ है, आपने उस पे पैर पे गाड़ी चढ़ा दिया, वो स्पेसिफिक बॉडी इंजरी हो गई क्योंकि किसी पार्ट पे आपने चढ़ाया है। ये तो किलिंग समवन ये हो रहा है इंटेंशनली, तो मर्डर भी तो सब सेम ही होता है ना, किसी को अगर इंटेंशनली नहीं ना, इंटेंशनली होता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट इंटेंशनली नहीं होता है, बट यहाँ पे यही तो फर्क है कि पनिशमेंट का बेसिकली सबसे बड़ा फर्क हो जाता है। अब यहाँ पे भी इंटेंशन है, मर्डर में भी इंटेंशन है, आप समझ रहे हो, मगर मर्डर में एक्सेप्शन भी दिया हुआ है। सर मैं अगर ड्राइव कर रही थी और सामने कोई बंदा आया और मेरी गाड़ी से वो टक्कर मिला, ठीक है, और वो मर गया, लेकिन मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ये तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर दोनों में नहीं आता है, लेकिन प्रोबेबली मर्डर में ही आएगा क्योंकि मेरी गाड़ी से वो एक्सीडेंट होकर मरा है, तो केस तो मेरे ऊपर आएगा। नॉट नेसेसरी, अगर हो सकता है वो अचानक से आ गया हो, क्या पता, वो तो मैं पूरे केस पे डिपेंड करेगा ना। अब आपको क्या पता वो अचानक से आया है कि आपका इंटेंशन नहीं भी था। अगर आपका इंटेंशन नहीं था, एट व्हाट स्पीड यू वर ड्राइविंग, whether you were driving recklessly or not, there will be many factors. But sir, if that time मैं बहुत मतलब रश ड्राइव कर रही थी, जो कि मुझको नहीं करना चाहिए था, और उसके बाद भी नेग्लिजेंट ड्राइव में, हाँ बोलिए। और उसके बावजूद वो सामने अगर कोई सोकर था, मानकर चलिए कि स्ट्रीट बेगर्स थे, कोई भी थे, और वो डेथ हो गए उसी वक्त, और मुझको पता था ये बात कि वो स्ट्रीट में वो लोग लेटे हुए और मुझको सही तरीके से चलाना चाहिए था गाड़ी, लेकिन मैं रश चलाई। आपको पता था, अगर आपको पता था कि सामने कोई अगर लेटा हुआ है, ठीक है, मेरा एग्जांपल समझिएगा, अगर आपको पता था कि सामने कोई लेटा हुआ है एंड स्टिल यू क्या कहते हैं, यू ट्राई टू जस्ट किल हिम बाय रनिंग योर कार, देन इट विल बी मर्डर। बट मान लीजिए आपका इंटेंशन नहीं था, ठीक है, देन इट विल बी अ केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। मतलब it depends upon the complete basically a complete आप कह सकते हो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे डिपेंड करेगा। विल कम टू इट ओके सर, ओके, विल कम टू इट, ठीक है। वैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्योंकि हम स्पेसिफिक बॉडी इंजरीज की बात कर रहे थे, एक और ऐसे एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी विलेज में somebody is showing a stunt with a लाठी, ठीक है, जैसा होता है ना कि गांव में कोई ना करतब दिखा रहा है लाठी घुमा के और लाठी नचा के, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, क्राउड है वहां पे, अब वो लाठी नचा रहा है। अब हुआ क्या कि उस लाठी से किसी के सर पे चोट लगी एंड दैट पर्सन डाइड, अब वो पर्सन वहां मर गया, ठीक है। अब आप एग्जामिन करोगे क्योंकि होमिसाइड का केस है, अब आप मर्डर नहीं बोल दोगे उसको, आप समझ रहे हो, यू कैन नॉट से डायरेक्टली इट इज अ मर्डर। अब आप सबसे पहले 100 पे आओगे, 100 पे आप सबसे पहले देखोगे क्या इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ था। अब इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ तो था नहीं, क्योंकि वो तो उसको एम करके उसको चाहता तो नहीं था वो पर्सन मर जाए, दैट वाज नॉट हिज इंटेंशन, तो इंटेंशन टू डेथ कॉज डेथ ऑफ दैट पर्सन वाज नॉट देयर। फिर आप देखोगे सेकंड क्लॉज में आगे कि इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी एज टू लाइकली टू कॉज डेथ था कि नहीं था, क्योंकि उसने कोई स्पेसिफिक बॉडली इंजरी थोड़ी ना कॉज की थी। जैसे मैंने तब से बता रहा हूँ, जो पर्टिकुलर बॉडली इंजरी कॉज करने का तो इंटेंशन नहीं था, तो सेकंड में भी नहीं आएगा, तो वो थर्ड में आएगा कि एटलीस्ट उसको नॉलेज तो था ना कि जो एक्ट वो कर रहा है इससे किसी को चोट लग सकती है और इवेंचुअली वो मर सकता है, तो इट विल फॉल अंडर द थर्ड क्लॉज बेसिकली। आई होप सो यू आर अप्रिशिएटिंग व्हाट आई एम सेइंग।
यस ये सर। एग्जामिनेशन करने का तरीका है। फर्स्ट आपको फर्स्ट क्लॉज में अगर बॉडली इंजरी है तो, अगर बॉडली इंजरी है तो फर्स्ट क्लॉज जाइए, सेकंड क्लॉज जाइए, थर्ड क्लॉज जाइए। बॉडली इंजरी है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है, अगर इट इज नॉट स्पेसिफिक देन फर्स्ट क्लॉज एंड डायरेक्टली कम टू द थर्ड क्लॉज। जैसे स्पेसिफिक नहीं का मैंने एग्जांपल दिया, जैसे आपने छत से फेंक दिया किसी को, आपको पता ही नहीं कहाँ चोट लगने वाली है उसको, जब आपको नॉलेज ही नहीं था कि कहाँ चोट लगने वाली, तो उसमें हम इंटेंशन कहाँ से निकाल लेंगे? इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी था, जब नॉलेज ही नहीं था कहाँ चोट लगने वाली है, तो इंटेंशन कैसे उसमें हम निकाल सकते हैं? तो हम फर्स्ट और थर्ड में फिर देखेंगे उसको, नॉलेज में जाके देखेंगे। ठीक है, ये तो मैंने बॉडली इसीलिए मैं डिवाइड कर रहा था विद बॉडली इंजरी और विदाउट बॉडली इंजरी वाली चीज। ठीक है, अब विदाउट बॉडली इंजरी अगर आपने किसी को डेथ किया है, ठीक है, विदाउट बॉडली इंजरी अगर किसी का डेथ हुआ है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्लॉज में देखोगे। ठीक है, आप सबसे पहले फर्स्ट क्लॉज में देखोगे। क्या आप लोग सेकंड क्लॉज में जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि इट इज अ केस ऑफ डेथ विदाउट बॉडली इंजरी ना। तो फर्स्ट में जाओगे, और अगर फर्स्ट में प्रूव हो गया इंटेंशन तो वेल एंड गुड, नहीं प्रूव हुआ तो थर्ड में आओगे। आप समझ रहे हो सेकंड में क्यों ही जाओगे? क्योंकि अब देखिए, इसका बाइफरकेट करने का इसलिए रीजन है मेरा, क्योंकि यहाँ पे पनिशमेंट अगर आप देखोगे ना तो अलग अलग है। अगर आप 105 में आके देखोगे पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में, सेक्शन 100 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का पनिशमेंट सेक्शन 105 पार्ट 1 में दिया है, जहां पे मैक्सिमम पनिशमेंट आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और अगर थर्ड में, थर्ड मतलब वाला हो गया नॉलेज वाला, वन आपका हो गया इंटेंशन टू कॉज डेथ वाला, सेकंड हो गया इंटेंशन टू कॉज दैट बॉडली इंजरी दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ, यहाँ पे मैक्सिमम सेंटेंस आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। थर्ड में आपका मैक्सिमम पनिशमेंट अगर आप देखोगे दैट इज 10 ईयर्स। तो मतलब आप ये सोचो कि आप अपने क्लाइंट को बहुत चीजों से बचा लोगे, उसको जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो रिड्यूस कर पाओगे। दैट इज व्हाई देयर इज अ थिन लाइन ना। द एडवोकेट्स ट्राई टू बेसिकली the advocates try to prove and try to save their clients. Doesn't matter अगर वो बच भी एक्विट हो रहा है नहीं हो रहा है, एटलीस्ट द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट केस को लाना उस क्लॉज में इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही मैं यहाँ पे समझा रहा था कि अगर डेथ कॉज बाय बॉडली इंजरी से 1 में देखो, सेकंड में देखो, थर्ड में देखो। स्पेसिफिक बॉडी इंजरीज नहीं है तो मत देखो सेकंड में, फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड पे आओ। डेथ कॉज विदाउट बॉडली इंजरी है तो फर्स्ट में देखो और थर्ड में देखो, क्योंकि सेकंड तो बात करता है बॉडली इंजरी, स्पेसिफिक बॉडली इंजरीज की। तो जब इंजरीज के साथ डेथ कॉज ही नहीं किया है तो उसमें देखने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे विदाउट बॉडली इंजरी की बात कर रहा हूं मैं, तो विदाउट बॉडली इंजरी में आप देख सकते हो कि अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को क्रूज पे ले गए, आप किसी के साथ क्रूज पे गए और आपने क्या किया, उसे मिडिल ऑफ द सी में ढकेल दिया। अब दिस इज समथिंग विच इज वेरी यू कैन से ग्रेव। तो वहां पे इंटेंशन टू कॉज डेथ हो सकता है, सेकंड में देखना ही नहीं है, फर्स्ट में ही आ गया। सेकंड तो वैसे भी देखना नहीं है आपको, सीधा सेकंड के फर्स्ट के बाद थर्ड में आपको देखना है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अगर आपको समझने की कोशिश करो तो जैसे मान लीजिए स्विमिंग कोचेस होते हैं। स्विमिंग कोचेस की अक्सर आदत होती है, जैसे वो क्या करते हैं, फॉर द पर्पस दैट कि अ पर्सन लर्न स्विमिंग वेरी सून, व्हाट दे डू इज दैट दे थ्रो द पर्सन इन द डीप वाटर्स इन द स्विमिंग पूल। जो गहराई वाला हिस्सा होता है वहां पे दे यूज टू थ्रो अ पर्सन, वहां पे फेंक देंगे ताकि वो अपने से हाथ पैर मारे और ही लर्न्स इट वेरी क्विकली। ठीक है, तो मान लीजिए एक इंसिडेंट लेते हैं कि एक कोच ने क्या किया, एक पर्सन को या बच्चे को उठा के थोड़े गहराई में फेंक दिया। ठीक है, अब आसपास और भी कोचेस थे, और भी लोग थे। ठीक है, अब ये ऐड करने से उसका डेथ कॉज हो गया उस बच्चे का। ठीक है, डेथ कॉज हो गया। अब ये जो अब यहाँ पे अगर हम फिर से हम आते हैं यहाँ पे और कल्पेबल होमिसाइड के अंदर देखते हैं, तो क्या इंटेंशन टू कॉज डेथ है? इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं था, वो चाह थोड़ी ना रहा था कि वो मर जाए। what he wanted was कि he learn it, but unfortunately this thing happened। ठीक है, अब सेकंड क्लॉज में तो आओगे ही नहीं, फर्स्ट क्लॉज नहीं लगा, इंटेंशन प्रूव नहीं हो पाया। सेकंड क्लॉज में तो आओगे नहीं, क्योंकि सेकंड क्लॉज तो बॉडली इंजरी की बात करते हैं, यहाँ तो विदाउट बॉडली इंजरी किसी की डेथ कॉज हुई डूबने से। तो आप सीधा फर्स्ट के बाद थर्ड में आओगे, और थर्ड में एटलीस्ट ये तो प्रूव हो जाएगा ना कि उसको नॉलेज तो था कि भाई जो वो act of throwing a child in the middle of the swimming pool will cause his death, might cause his death। knowledge, this awareness तो he had ना, though he was not having this मुझे से मारना ही है, मतलब he was not having that anyways। ठीक है, तो then you can say अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई पर्सन किसी को रात में, nobody is there and he just pushes a person into the swimming pool and he drowned, वहां आप कह सकते हो कि इंटेंशन है, फर्स्ट में ही प्रूव हो जाएगा। देखिए, the thing is that
why these topics are so technical, because it's totally depends upon the case and circumstances. यहाँ पे कोई भी ना hard and fast formula नहीं हो सकता, but आप examination तो कर सकते हो as per the law जो होना चाहिए. What I mean to say is that I cannot give you a single example जो आप सब चीज को cover कर दे, but what I can just say is that आप at least you can try to relate. You just need to examine according to this particular under this particular सेक्शन. ठीक है, अब जैसे मैंने बात किया इसके पनिशमेंट की, इट इज प्रोवाइडेड देयर. ठीक है, अब आपने कल्पेबल होमिसाइड को प्रूव कर लिया. ठीक है, ये मैंडेट है, आपको पहले कल्पेबल होमिसाइड प्रूव करना है. आपको किसी क्लॉज में उस होमिसाइड को लाना जरूरी है, बिना उसके आप सीधा मर्डर में जंप कर ही नहीं सकते. दैट इज नॉट द मैंडेट ऑफ द कोर्ट्स एज वेल. ठीक है, तो अब आपने कल्पेबल होमिसाइड प्रूव कर दिया. अब कल्पेबल होमिसाइड प्रूफ करने के बाद यू विल कम टू द सेक्शन ऑफ मर्डर. ठीक है, अब मर्डर में अगर आप देखोगे यहाँ पे पेयर सेक्शन पढ़ोगे तो लिखा है कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर. मतलब अगर ऐसे समझो तो हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड है, बट हर कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर. कहने का ये मतलब है मर्डर को होने के लिए उसका पहले कल्पेबल होमिसाइड होना जरूरी है, तभी वो मर्डर होगा. आप समझ रहे हो बात? देखिए प्रोसिक्यूशन क्या करेगा ना, प्रोसिक्यूशन हमेशा कोशिश करता है कि फर्स्ट क्लॉज में डाले कल्पेबल होमिसाइड से. ठीक है, फर्स्ट क्लॉज में डाले ताकि ज्यादा पनिशमेंट मिले. तो प्रोसिक्यूशन विल ऑलवेज ट्राई टू get you more of the punishment, quantum of punishment, but being an advocate, being a defense advocate, you will try to bring down the quantum of punishment so as to evade your the responsibility or culpability of your client basically. ठीक है, अब यहाँ पे ये बहुत important है. That's why I'm saying that this topic is very technical and can't be done in a single class, but because I'm going very fast also at the same time, I don't know how many of you are able to get it, but the next is, since you have able to prove that an act of killing has fallen under any of the three clauses under section 100, that is culpable homicide. अब यहाँ पे एक केस था, that is रेज वर्सेस गोविंदा 1876 का, जो फर्दर एग्जामिनेशन की बात करता है, जहाँ पे जस्टिस मेलविल कहते हैं कि अगर आपका केस फर्स्ट पार्ट में प्रूव हो गया है, कल्पेबल होमिसाइड के फर्स्ट पार्ट में प्रूव हो गया, तो नाउ यू विल गो टू द मर्डर में आप जाओगे और मर्डर के फर्स्ट पार्ट में चेक करोगे, फर्दर एग्जामिन करोगे. आप समझ रहे हो, ये फर्दर एग्जामिनेशन की बात कर रहा है. कल्पेबल होमिसाइड प्रूव हो जा रहा है, हो गया, अब आप मर्डर में भी तो प्रूव करोगे कि वो मर्डर है कि नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने बोला एवरी मर्डर इज अ कल्पेबल होमिसाइड. मर्डर हर मर्डर का कल्पेबल होमिसाइड ही होता है, तो पहले कल्पेबल होमिसाइड होना जरूरी है. अगर पार्ट 1 तो जैसे मैंने बताया इंटेंशन टू कॉज डेथ वाला था, वो प्रूव हो गया, तो आप कहाँ चेक करोगे? अब इंटेंशन टू अब आप चेक करोगे 101 पार्ट 1 में. अब पार्ट 2 अगर प्रूव्ड हो गया है, पार्ट 2 जो बात कर रहा था इंटेंशनल कॉजेशन ऑफ बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, अगर वो वाला प्रूफ हुआ है तो आप पार्ट 2 और 3 में देखोगे मर्डर के. ठीक है, अगर पार्ट 3 प्रूव हुआ है, पार्ट 3 बात कर रहा था आपका नॉलेज वाला, नॉलेज टू लाइकलीहुड ऑफ कॉज डेथ, अगर वो प्रूव्ड हो गया है तो आप पार्ट 4 में मर्डर के चेक करोगे. आप समझो, दिस इज द मैंडेट. सुप्रीम कोर्ट हैज reiterated and in many of the cases this is the actual examinations which is required. एक बार जब कल्पेबल होमिसाइड प्रूफ हो जाता है, ठीक है, और आपके मर्डर में देयर आर 4 क्लॉजेस. जैसे कल्पेबल होमिसाइड में 3 क्लॉजेस था, तो पहला वाला प्रूव हुआ तो इसमें चेक करो, दूसरा वाला प्रूफ हुआ है तो इसमें चेक करो. सॉरी, आपका दूसरा वाला अगर प्रूफ हो गया है, माय बैड, दूसरा वाला प्रूफ हो गया है तो आप सेकंड और थर्ड में चेक करोगे, और तीसरा वाला वहां प्रूफ हो गया क्योंकि 3 ही क्लॉज दिए हुए हैं ना कल्पेबल होमिसाइड में, तीसरा वाला प्रूफ हो गया है तो आप 4th में आप एक बार चेक करोगे. ठीक है, आप ऐसे समझो कि कल्पेबल होमिसाइड जो है ना वो जीनस है, मर्डर जो है वो स्पीशीज है. तो हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड है, मगर हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं हो सकता. ठीक है, आपको कल्पेबल होमिसाइड से मर्डर जाने में ना कुछ एक्स्ट्रा प्रूफ करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट प्रूफ करना पड़ेगा. वही एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट दिया हुआ है मर्डर में. आप समझ रहे हो, आपका क्वांटम ऑफ पनिशमेंट बढ़ जाएगा यहाँ पे ना, क्योंकि मर्डर का तो पनिशमेंट या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या तो डेथ है सीधा. समझ रहे हो, तो ये क्वांटम ऑफ पनिशमेंट का प्रॉपर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मिले किसी ने कोई अगर एक्ट किया है तो वो फर्दर एग्जामिनेशन के लिए मर्डर इज देयर एंड विद द 4 क्लॉजेस.
ठीक है, तभी लिखा हुआ है कल्पेबल होमिसाइड इज अ मर्डर इफ द फॉलोइंग 4 क्लॉजेस इज प्रूव्ड, ठीक है। बट इसमें 5 एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं, अगर आप देखोगे लिखा हुआ है ना, एक्सेप्ट इन द केस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड, मतलब इनके अलावा जो केसेस दिए हुए हैं अगर उसमें हुआ तो एक्सेप्टेड हो जाएगा। ये कुछ 5 एक्सेप्शंस है, जैसे कि प्राइवेट डिफेंस में अगर आप किसी का मर्डर कर देते हो, किसी को किल कर देते हो, एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, मान लो कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी करते वक्त फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ही हैज कॉज्ड द डेथ ऑफ समवन, तो इसमें आ जाएगा। कंसेंट ऑफ अ पर्सन, मतलब जिसकी आपने डेथ कॉज की। आईपीसी में था सेक्शन 99 से लेके 106 तक, लेकिन बीएनएस में क्या है सर उसका सेक्शन? आप एक बार देख लीजिएगा उसका उसका जो उसका सेक्शन होगा रिगार्डिंग दिस, लुक आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट द मोमेंट। ठीक है। सो कंसेंट ऑफ अ पर्सन किल्ड, मतलब कि जैसे यूथेनेशियास के केस हो गए ना, पर्सन जो जिसको आपने मारा उसने कंसेंट दिया था कि भाई ठीक है, सडन फाइट, सडन पैशन ऑफ हीट में, फिर आप गिवन सडन प्रोवोकेशन में, ठीक है। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू, सर एक क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने ओके सर, अच्छा बोलो। तो ऐसा भी आपने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि सडन प्रोवोकेशन एक उसका एक्सेप्शन हो सकता है। अगर जैसे सडन प्रोवोकेशन में उसको इस बात की पूरी नॉलेज भी थी कि अगर मैं जैसे कुछ उसके साथ करूंगा तो उसकी डेथ हो सकती है, मे बी उसकी डेथ कॉज हो सकती है, तो कैसा में भी हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर से बोलो एक बार, फिर से बोलो प्लीज, फिर से बोलिए। तो जैसे लास्ट स्लाइड में आपने बताया कि सडन प्रोवोकेशन जो है वो एक एक्सेप्शन हो जाता है मर्डर में। तो अगर किसी की फाइट के बीच में किसी ने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी या किसी को चाकू वाकू मार दिया जिससे ये हो रहा है कि हाँ उसकी डेथ हो गई है, उसको इस बात की नॉलेज भी थी कि अगर मैं इसको मारूंगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो सर वो एक्सेप्शन में फिर कैसे जाएगा? उसमें तो इंटेंशन भी था, नॉलेज भी था। क्या कह रहे हो? अगर उसने फिर से एक बार फिर से मतलब जस्ट गिव मी अ सिचुएशन, मुझे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसे दो। हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये हो सकती है कि जैसे ए और बी की अगर फाइट हो रही है, बी ने ए को स्ट्रैप कर दिया चाकू से, उसको इस बात की नॉलेज भी थी कि अगर मैं स्ट्रैपिंग करूंगा तो उसकी डेथ कॉज हो सकती है, उसके पास नॉलेज भी था, इंटेंशन भी था, मोटिव भी था। नॉलेज था, मतलब नॉलेज, अरे तो उसमें से कुछ एक होगा ना। मान लो उसने स्टैप कर दिया, हम स्टैप से देखेंगे ना, हम क्या पता उसका नॉलेज है, इंटेंशन है, क्या है वो हम लोग डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तुम कह रहे हो ए और बी की लड़ाई हो रही थी, ठीक है, और किसने बी ने ए को चाकू से स्टैप कर दिया, ठीक है। कहाँ स्टैप किया? देखो एक एक चीज देखनी पड़ती है, कहाँ स्टैप किया? पेट में? जी सर। मान लो पेट में स्टैप कर दिया, क्या सीने पे किया, पेट पे? बिकॉज दीज आर द सर्कमस्टांसेस व्हिच विल बी लुक्ड ना, तभी तो पता चलेगा। मान लो कहाँ स्टैप किया, सीने पे स्टैप कर दिया फॉर एग्जांपल, फिर सर जैसे सीने पे उसको स्टैप कर दिया, अब उसको इस बात की नॉलेज भी थी कि अगर मैं उसको स्टैप करूंगा तो उससे उसकी डेथ कॉज हो सकती है। नॉलेज यहाँ तो हम इंटेंशन ही बोल सकते हैं सीधा। अगर तुम किसी को सीने पे स्टैप करोगे तो तुम्हें नहीं लगता है कि वहां पे तो इंटेंशन भी हम निकाल सकते हैं? अगर इंटेंशन नहीं भी निकाल पाओगे तो बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ। यहाँ पे तो वैसे सही बताऊं तो सीने पे अगर तुम किसी को स्टैप कर रहे हो वहां तो तुम इंटेंशन भी निकाल सकते हो तुरंत। तुम कैसे तो मतलब तुम उसके एक्ट से तो, अगर मान लो उसने पैर को स्टैप किया, क्या तो सर ये एक्सेप्शन में कैसे जाएगा? अभी आपने इसके प्रीवियस स्लाइड में बोला था कि सडन फाइट गुस्से में मार दिया किसी ने। जी सर। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करो कि तुम कह रहे हो कि चलो ले लेते एक क्वेश्चन, तुम कह रहे हो कि ए और बी की लड़ाई हुई, बी ने गुस्से में ए को स्टैप कर दिया चेस्ट पे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे होमिसाइड हुआ है ना, किलिंग हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम सीने पे किसी के स्टैप करोगे तो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ तुम्हारा प्रूव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम किसी के सीने पे चाकू मारोगे तो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ प्रूव होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। अब इंटेंशन टू कॉज डेथ प्रूव हो गया, अब तुम्हारा फर्स्ट वाला प्रूव हुआ है यहाँ पे, है ना, देखो फर्स्ट वाला प्रूव हो गया। अब यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड का फर्स्ट प्रूव हुआ, तो अब कहाँ जाओगे? फर्स्ट पार्ट में जाओगे? थर्ड पे जाएंगे सर, मर्डर के फर्स्ट पार्ट पे जाओगे ना। यस सर। कल्पेबल होमिसाइड फर्स्ट प्रूव हुआ है तो इधर देखो ना, एक इंटेंशन के फर्स्ट पार्ट पे जाओगे ना। यस सर। मतलब मर्डर के फर्स्ट पार्ट पे जाओगे। अब तो मर्डर के फर्स्ट पार्ट पे गए, क्या कह रहा है? इफ द एक्ट इज डन, अगर इफ द एक्ट बाय व्हिच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है, ठीक है, ये लैंग्वेज एकदम सेम है। मैं एक चीज तुम्हें बताऊं कि अगर आप फर्स्ट क्लॉज ऑफ कल्पेबल होमिसाइड में अगर इंटेंशन टू कॉज डेथ में बुक होते हो तो ऑटोमेटिकली आप इसमें भी बुक हो जाओगे, ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि उसने गुस्से से मारा, ठीक है, तुम कह रहे हो सडन फाइट में मार दिया, ये कह रहे हैं सडन प्रोवोकेशन में मार दिया। अब ये जो केस है ना,
ये मर्डर के लिए अब नहीं चार्ज होगा क्योंकि उसने सडन रेज में मारा है। अब वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा, मतलब उसको सेक्शन 105 के अंदर सजा मिलेगी। देखो कैसे कह रहा है, कल्पेबल होमिसाइड प्रूफ हो गया 100 के अंदर, ठीक है, कोई भी पार्ट में एक, फिर मर्डर प्रूफ हो गया 101 में, ठीक है, मगर जी। कोई एक्सेप्शन भी प्रूव हो गया, मतलब जो तुमने कहा कि सडन रेज में मार दिया, ठीक है, कुछ भी हुआ होगा, मतलब एब्यूजिंग एंड ऑल दीस थिंग्स, तो सडन रेज में मार दिया, तो अब वो मर्डर नहीं रह गया, अब वो मर्डर बन गया कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। समझो, कल्पेबल होमिसाइड प्रूव हुआ, मर्डर प्रूव हुआ, बट एक्सेप्शन भी एप्लीकेबल हो गया, तो वो मर्डर थोड़ी ना रह जाएगा। वो किसने कहा कि मर्डर हो जाएगा? वो नहीं। अगर तुम्हारे, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर एक्सेप्शन लग जा रहा है तो वो मर्डर अब मर्डर नहीं रह जाएगा, भले आपका कोई एक क्लॉज प्रूव हो गया यहाँ पे। पहले देखो, यही मैं समझाने जा रहा था, इसीलिए एक बार समझने की कोशिश करिए। इट इज अ टेक्निकल टॉपिक। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड प्रूफ हो गया 100 में, कोई भी एक पार्ट में, फिर मर्डर भी प्रूफ हो गया 4 जो क्लॉज है उसमें किसी भी एक पार्ट में, ठीक है, बट एक्सेप्शन भी प्रूव हो गया, एक्सेप्शन भी एप्लीकेबल हो गया, जो 5 एक्सेप्शन दिए हैं। अब वो मर्डर थोड़ी ना रहा। कह तो रहा है ना सेक्शन कि भाई अगर आपके एक्सेप्शन में आ जाएगा, ही एक्सेप्ट इन द केसेस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड, तब थोड़ी ना होगा। मगर ये समझ रहे हो, तो ये अब क्या हो गया, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो गया। अब इसकी सजा आपको 103 में नहीं मिलेगी, अब इसकी सजा आपको 105 में मिलेगी। समझ रहे हो? और दैट जी आल्सो बेस्ड ऑन द वो। अब मान लीजिए कल्पेबल हो, अब जैसे एक और क्वेश्चन हो सकता है कि भाई कल्पेबल होमिसाइड प्रूफ हो गया सेक्शन 100 में, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड प्रूफ हो गया कोई भी एक क्लॉज सेक्शन 100 में, बट मर्डर में ही, मर्डर के ही क्लॉज में नहीं प्रूफ होगा, एक्सेप्शन तो जाएंगे ही नहीं अब ना। मर्डर का ही 4 में से कोई प्रूफ नहीं हो पाया, तो वो भी होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो गया। इसमें भी आप सजा 105 में जाओगे ना कि 130 में, 103 में। 103 में मर्डर का दिया हुआ है पनिशमेंट। आप समझ रहे हैं? See, this topic is a bit technical, I understand. See, it can't be just explained in a very short period of time. Rather, it should be kept as a workshop. Then it can be over a period of 2 to 5 days. It can be explained, because in an hour, this is a very debatable topic. A very thin line and a very too much of intricacies are there. So that is the main thing about this particular topic. Okay. So what I was saying is that, so where the discussion was, so so you guys want to continue, or should I just you guys are willing to attend more, because I think the 1 hour has been passed. So you guys want me to तो just क्या ड्राफ्टिंग का क्या दिखाना था सर आपको? आप बोले थे ना लास्ट में कुछ दिखाना है, कुछ स्लॉट। drafting? I didn't get. आप क्या था एक टॉपिक? वेट अ मिनट सर, वेट जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं बता रही हूँ। Yeah. हाँ सर, वो ड्राफ्टिंग एंड लिटिगेशन के बारे में कुछ इम्प्लीकेशन देना था आपको। Yeah, I'll just go to it. But what I'm asking to the viewers is right now is कि whether you guys want to me to हाँ ठीक continue. है सर, वो समझ में आ गया। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर ये क्लियर है। अगर कल्पेबल होमिसाइड हो रहा है, इंटेंशन फॉर किलिंग समवन, लेकिन वो मर रहा नहीं है, वो जिंदा है ऑलरेडी, मतलब कुछ भी हुआ है ऐसा, लेकिन वो अभी तक डेथ नहीं हुआ। अगर वो डेथ हो जाता है तो वो मर्डर में शामिल हो जाता है। नहीं, ये किसने कहा? डेथ तो आपका कल्पेबल होमिसाइड में भी हो जाएगा, मैंने पहले तो तो बोला सर अगर हो गया तो वो मर्डर में तो आ जाएगा ऑब्वियसली। डेथ होना मतलब मर्डर में आ जाना। तो कल्पेबल होमिसाइड में डेथ नहीं होगा। हाँ होगा, वही तो मैं सर बोल रही हूँ कि अगर डेथ हो गया तो वो मर्डर में भी तो आ जाएगा ना। अच्छा ठीक है, मैं what I'll do is that I'll continue then, because I think I should continue. Fine. ठीक है। हाँ, तो what I was saying is that Well, एक बार bodily injury और bodily injury likely to cause death और death में difference बता दीजिए आप। I will tell, but first let me start with murder also, because or else what will happen na कि other knowledge will be very hazardous. I'll definitely come to it, but first let me start with murder also, है ना? Because ये जो portion है, this portion which I was talking about, कि भाई culpable homicide तो हमने अब तक समझ लिया क्या है ना? Murder पे भी हम गए नहीं है, ठीक है? तो what I'll do is first will definitely go to the first clause, that is of murder, ठीक है? अब यहाँ पे आप एक चीज समझो कि आपका फर्स्ट क्लॉज यहाँ जो है, दैट इज इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ये प्रूव हो गया, ठीक है? मान लो आपने किसी को मारा, सर पे 20 ब्लोज मारे, मर गया वो, ठीक है?
अब 20 लोग किसी के सर पे मार रहे हो, सर पे किसी की गोली मार रहे हो, तो इंटेंशन, आपने सर में किसी की गोली मारा, चलिए ठीक है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ तो प्रूव हो गया कल्पेबल होमिसाइड में, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट कहाँ आना है अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट, हमें नेक्स्ट अब आना है सेक्शन 101 पार्ट 1 में, चेक करना है कि वो मर्डर है कि नहीं। देखिए अब सेक्शन 1 ऑफ 101 ये कहता है कि इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड with the intention of causing death, अगर आप लैंग्वेज देखोगे तो लैंग्वेज इज कंप्लीटली सिमिलर टू द कल्पेबल होमिसाइड। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि अगर आपका कल्पेबल होमिसाइड क्लॉज 1 में प्रूव हो जाता है कि इंटेंशन था डेथ कॉज करने का, तो यहाँ 1 में ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट फर्स्ट क्लॉज के लिए। बाकी सब में तो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट प्रूव करना पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट क्लॉज यू डोंट नीड टू प्रूफ एन एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो तो फिर सर यहाँ पे दिया क्यों है ये चीज, है ना, व्हाई इट हैज बीन प्रोवाइडेड अगेन, नहीं दिया होता वहीं से मान लेते मर्डर है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है ना कल्पेबल होमिसाइड इज अ मर्डर, क्योंकि अगर ये नहीं लिखता तो इट वुड हैव बिकम द वायलेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ मर्डर, बेसिकली वायलेशन हो जाता है उस लैंग्वेज का, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का। तो इसीलिए अब आप फर्स्ट क्लॉज वहां देखे, फर्स्ट क्लॉज यहाँ देखे, तो अब इंटेंशन तो वहां पे जब हो गया तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अब मर्डर हो गया, ठीक है, मर्डर मान लिया, अब आपको देखना है कि इसमें कहीं ना फॉल करे, क्योंकि अगर इसमें कहीं फॉल कर गया गलती से, कोई एप्लीकेबल हो गया, कोई एक्सेप्शन जो है, तो वो वापस बन जाएगा कल्पेबल होमिसाइड टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तब वो मर्डर नहीं रह जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसमें से कहीं फॉल नहीं किया, आपका क्लॉज 1 प्रूव हुआ 100 का, क्लॉज 101 प्रूव हुआ 101 का, और किसी एक्सेप्शन में नहीं एप्लीकेबल है, तब आपका ये मर्डर बन जाएगा, समझ रहे हैं। कल्पेबल होमिसाइड प्रूव हो गया कोई क्लॉज, मर्डर प्रूव हो गया कोई क्लॉज, एक्सेप्शन नहीं लग रहा है, कोई सडन रेज प्रोवोकेशन किसी में नहीं हुआ, तब वो मर्डर पनिशेबल होगा, और मर्डर पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 103। अगर आप समझ पा रहे हो, थोड़ा टेक्निकल है, एक बार में नहीं समझ में आएगा, बट दिस इज द प्रॉपर फर्दर एग्जामिनेशन दैट वाज लेड डाउन बाय दैट पर्टिकुलर जजमेंट, ठीक है। तो देन इट विल बी मर्डर। मान लीजिए एक्सेप्शन कोई एप्लीकेबल हो जाता, फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाता, उसमें सजा कम है ना, इसमें सजा तो बहुत है, तो ये डिफरेंस, सजा का डिफरेंस आ जाएगा, इस चीज का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, एटलीस्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्लॉज। मान लीजिए दोनों में तो डेथ हो रही है, कल्पेबल होमिसाइड में भी डेथ हो रही है और मर्डर में भी डेथ हो रही है, तो ये हम लोग प्रूफ कैसे कर पाएंगे सजा कम करवाने के लिए कि कल्पेबल होमिसाइड ही है, मर्डर नहीं? एक्सेप्शन में, क्योंकि एक्सेप्शन में नहीं फॉल हुआ ना। ओके ओके, मान लीजिए एक्सेप्शन, आप खुद सोचिए ना, इसीलिए तो बनाया गया है ना भाई, अगर आपने किसी को गुस्से से मार दिया होता, ठीक है, सडन प्रोवोकेशन में हो जाता, या इन सारी प्राइवेट डिफेंस में मार दिया जाता, और प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे कह रहा है नॉर्मल प्राइवेट डिफेंस नहीं, यहाँ प्राइवेट डिफेंस जब एक्सीड हो जा रहा है तब की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हो, आई होप से समझ पा रहे हो, एक बार में नहीं आएगा, बट अगर बहुत ध्यान से, प्राइवेट डिफेंस पार्ट क्लियर है मेरा, इसलिए मैं ठीक है सर, हाँ समझ रही हूँ, समझ गए ना आप, तो ये चीज है। आई वांट टू आस्क यू दैट फॉर बीएनएसएस की सेक्शंस कौन से सर जो रिलेटेड है इससे? बीएनएसएस सर, हम एक्चुअली बीएनएसएस पढ़ रहे हैं, तो उसमें सर बता सकते हैं? सेक्शन 100 रिलेवेंट है, ठीक है, सेक्शन 100 रिलेवेंट है तुम्हारा, ठीक है, सेक्शन 100 पूरा पढ़ लो, सेक्शन 101 पूरा पढ़ लो, ठीक है, फिर आप क्या कहते हैं सेक्शन 103 पढ़ लो, 105 पढ़ लो, ठीक है, ये 4 तो पढ़ ही लो, ये चारों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पनिशमेंट और उसकी रिस्पेक्टिव सीआरपीसी में जो सर जो भी कन्वर्ट हुए हैं बीएनएसएस में, वो बता रहे हैं ना, वो वाले? वो मैं भी बाद में बताऊंगा, दैट विल बी दैट यू कैन जस्ट राइट मी अ मेल, ठीक है, और राइट मी अ लेटर, आई डेफिनेटली रिवर्ट टू यू ऑन दैट, ठीक है, डोंट वरी। अब जैसे, ठीक है, अब जैसे सेक्शन 100 जो है, ठीक है, उसका पार्ट 2 प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है, 1 वाला आप समझ गए क्या है, ठीक है, अब सेक्शन पार्ट 2 प्रूव्ड हो जाता है। सेक्शन पार्ट 2 क्या कहता था, सेक्शन 100 का पार्ट 2 क्या कहता था, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी एज टू लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब जो अक्यूज्ड है उसने कोई मतलब इंटेंशनली कोई ऐसी बॉडी इंजरी दी है जिससे डेथ कॉज होना है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या रहा है, स्पेसिफिक बॉडी इंजरी की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये चीज प्रूव्ड हो गई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये चीज प्रूव्ड हो गई, अब आप कहाँ जाओगे, अब आप ये जाओगे पार्ट 2 में। पहले पार्ट 2 क्या कह रहा है मर्डर का, इफ इट हैज बीन डन with the intention of causing bodily injury as the offender knows to likely to cause the death of a person to whom the harm is caused। अब अगर आप ये चीज को देखोगे तो आपको काफी सिमिलैरिटी मिलेगी
आपको सिमिलैरिटी क्या मिलेगी पुराने सेक्शन से कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी यहाँ पे भी है, वहां भी था, ठीक है, लाइकली टू कॉज डेथ वहां भी यहाँ भी है, बट वहां पे ऑफेंडर नोज वाला पोर्शन नहीं था। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट प्रूव करना पड़ेगा तभी मर्डर में आएगा कि ऑफेंडर को भी पता था कि जो इंजरी वो देने जा रहा है उससे मर्डर डेथ कॉज हो जाएगी। वहां पे ऑफेंडर का सिर्फ इंटेंशन बॉडली इंजरी कॉज करने का था, बस बॉडली इंजरी कॉज करने का था, स्पेसिफिक बॉडली इंजरी कॉज करने का था, ठीक है। अब उससे मर्डर, उससे डेथ कॉज होगा नहीं होगा वो डॉक्टर बताएगा, ठीक है। यहाँ पे बॉडली इंजरी कॉज करने की मंशा तो थी ही, मतलब इंटेंशन तो था ही, साथ ही साथ अक्यूज को ये भी पता था कि जो बॉडली इंजरी मैं देने जा रहा हूँ वो सफिशिएंट रहेगा, मतलब उससे डेथ कॉज हो जाएगी। अब देखिए ये ना थोड़ा पेक्यूलियर केसेस की बात करता है। फॉर एग्जांपल से जैसे मैं समझाना चाहूंगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल पेक्यूलियर केसेस बोले तो जैसे विल टेक एन एग्जांपल ऑफ, आप कह सकते हो स्वोलन स्प्लीन। स्प्लीन एक आपका हमारे बॉडी में राइट साइड पे एक फिस्ट साइज के बराबर एक ऑर्गन होता है, ठीक है, फिस्ट साइज, फिस्ट मतलब एक मुट्ठी के साइज का ऑर्गन होता है विच इज सिचुएटेड इन द राइट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब इसका जो काम है, इसका काम है आपको क्या कहते हैं, बेसिकली एंटीबॉडीज बॉडी में बनाना, बेसिकली लिम्फेटिक चीजों को कंट्रोल करना, जो आपकी इम्यूनिटी बेसिकली होती है, ठीक है। अब डॉक्टर के अकॉर्डिंग और कोई भी नॉर्मल ओपिनियन के अकॉर्डिंग अगर किसी को आप राइट साइड पे स्प्लीन के पास मार दोगे, स्प्लीन के ऊपर मार दोगे, तो वो मरेगा नहीं, एटलीस्ट ही विल नॉट डाई। बट मान लीजिए ऑफेंडर जानता था, या अक्यूज, जो ऑफेंडर या अक्यूज जो भी है, जानता था कि इस सामने वाले को स्वोलन स्प्लीन है, सूजन है उसके स्प्लीन में, और ये जानते हुए उसने इंटेंशनली कॉज किया है बॉडली इंजरी, जिससे उसका स्प्लीन बर्स्ट कर गया, फट गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिस विल बी मर्डर नाउ, दिस विल बिकम मर्डर बिकॉज द ऑफेंडर न्यू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट, कि भाई वो जानता था कि भाई मेरी मैं इंजरी जो देने जा रहा हूँ उससे सामने वाले को जो मैं इंजरी दे रहा हूँ उससे क्या होगा, उससे बेसिकली डेथ कॉज हो जाएगी। तो यहाँ पे नॉलेज भी प्रूफ, एक्स्ट्रा एलिमेंट एक प्रूफ करना पड़ेगा। वहां तो 2 एलिमेंट आपको बताया था ना, 2 टेस्ट बताया था, स्पेसिफिक बॉडली इंजरी बोला था, डॉक्टर का ओपिनियन बोला था, यहाँ पे तीसरा और एडिशनल, जब आप ये भी प्रूफ करोगे कि ऑफेंडर को पता था पहले से, मान लो स्वोलन अपेंडिक्स था, पता था ऑफेंडर को पहले से, जान के मारा वहां पे, ताकि जान के उसने उस दिया ताकि वो चीज कॉज हो, तो हियर यू कैन से the person was having, the person will be charged under murder, आप समझ रहे हो, तो फिर वो मर्डर के अंदर चार्ज हो जाएगा। सो दिस विल बी द थिंग, ठीक है, दिस विल बी द, जब सेकंड में होते हो तो आप इस पे देखोगे। और थर्ड कह रहा है, देखिए डिग्री का फर्क रहता है, डिग्री का फर्क होता है, आपको एक्स्ट्रा प्रूफ करना पड़ेगा मर्डर में लाने के लिए, एक्स्ट्रा इंटेंशन है, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज प्रूफ करना पड़ेगा, नॉलेज ऑफ द ऑफेंडर, हर चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, तभी तो एक्स्ट्रा पनिशमेंट दिलवा पाओगे। आपको प्रूविंग पे सब खेल रहा है, पूरा प्रूविंग पे डिपेंड करेगा, एंड दैट टू विद द केस एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ इट, ठीक है। फिर थर्ड बात करता है, इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी टू एनी पर्सन and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। अगर अब आप इससे मिलाओगे, सेकेंड क्लॉज से मिलाओगे, ठीक है, सेकेंड क्लॉज क्या कह रहा है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी इज लाइकली टू कॉज इट, यहाँ पे लाइकली वर्ड यूज किया है, लाइकली टू कॉज डेथ, और यहाँ पे वर्ड यूज किया इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कॉज। यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो बेसिकली डिग्री का फर्क है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वहां पे जो डिग्री है, वहां पे जो आपने इंटेंशन दिया है, वहां पे इंटेंशन जो आपका बॉडली इंजरी कॉज करने का है, उस बॉडली इंजरी से डेथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहाँ पे आपने ऐसी बॉडली इंजरी दी है जो सफिशिएंट है, जिससे बॉडली इंजरी, यहाँ पे डिग्री ज्यादा है मरने का, जो आपको जो इंजरी से जो मर सकते हो, यहाँ डिग्री ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा नॉर्मल एग्जांपल है कि वहां पे जहाँ पे 100 क्लॉज 2 में आपने किसी को पेन नाइफ से मारा, मान लो मर गया, ठीक है, तो वहां लाइवलीहुड पे बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपने किसी को शॉर्ट से मार दिया, तो शॉर्ट से किसी को स्टैब करोगे तो सफिशिएंट हो जाएगा इन द नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स की वो मर सकता है। तो बेसिकली मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि सर्कमस्टांसेस पे ही पूरा डिपेंड करता है। यहाँ पे तो सिर्फ डिग्री, इट हैज प्रोवाइडिंग द डिग्री ऑफ इट, कि वहां डिग्री कम है। आप ऐसे बोल सकते हो कि कल्पेबल होमिसाइड में डिग्री कम की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे
और एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स प्रूव करना है, ज्यादा डिग्री की बात करनी है, दैट्स व्हाई यहाँ सफिशिएंट पे अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है। आई जस्ट ट्राई टू वाइंड अप इन 10 more minutes. You guys will be fine, I think. Just a second. Okay, I'll continue then. Fine. The screen is visible, I suppose. ठीक है, तो आपने थर्ड वाला भी समझ गया, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द इट्स सफिशिएंसी। ठीक है, सफिशिएंट और वन लाइक्लीहुड की बात कर रहा है। अब मान लीजिए आपने थर्ड क्लॉज प्रूव कर लिया, इसका सेक्शन 100 का थर्ड क्लॉज कह रहा है नॉलेज दैट इज लाइकली बाय सच एज टू कॉज डेथ। थर्ड आपने प्रूव किया। अब थर्ड जब प्रूफ हो जाएगा तो कहाँ देखोगे जाके, फोर्थ क्लॉज में देखोगे। तो फोर्थ क्लॉज बेसिकली बात कर रहा है कि बेसिकली वहां पे तो बात कर रहा था 100 में कि आपके पास नॉलेज है, कि उस नॉलेज आपके पास ये नॉलेज है कि इस एक्ट से लाइकलीहुड है डेथ कॉज करने का। अब फोर्थ में अगर आप देखोगे तो इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस। इमिनेंटली डेंजरस मतलब यहाँ बेसिकली हो जा रहा है कि जो बुरा कॉन्सिक्वेंस होने वाला है वो एकदम तुरंत हो जाएगा। जो टाइम फ्रेम है कोई कॉन्सिक्वेंस होने का, दैट इज वेरी स्मॉल, टाइम फ्रेम इज वेरी स्मॉल, इमिनेंट डेंजरस। ठीक है, इमीडिएटली इट विल हैपन, immediately it will cause the consequences. तो imminent dangerous इसको कह रहा है that it must in all probability। यहाँ भी देखिए डिग्री का फर्क है, वहां पे नॉलेज था आपको लाइकलीहुड की हो सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट मस्ट सर्टेनिटी। इट मस्ट मतलब सर्टेनिटी, यहाँ प्रोबेबिलिटी 80% 90% है, 100% तो नहीं हो सकती, बट इन और प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज कर दिया है इट मस्ट के बाद। ठीक है, कॉज डेथ और बॉडली इंजरी एज लाइकली टू बेसिकली एज लाइकली टू कॉज डेथ। अब देखिए जैसे इस पे इसको इस पर्टिकुलर क्लॉज को समझाने के लिए आई कैन यूज अ एग्जाम्पल। बस आप इतना समझिए कि 103 में और 100 और 1014 में बस ये डिफरेंस है, वहां यहाँ पे हायर डिग्री ऑफ नॉलेज की आवश्यकता है आपको। ठीक है, वहां पे नॉलेज लाइकलीहुड की बात कर रहा है। ठीक है, सो ये बेसिकली जो बेसिकली आपका जो नॉलेज है वो हायर डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ 5 लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, एंड दे आर वेरी क्लोजली स्टैंडिंग टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, अब अगर जब मैं देखूं इस चीज को, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए यहाँ पे 5 लोग हैं हु इज स्टैंडिंग क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, अब what I did was I just took out my gun and I just shot in that direction without aiming at anyone. ठीक है, I just casually shot in that particular direction. ठीक है, अब अगर आप देखो तो इस पे कौन सा क्लॉज लगेगा, अगर हम 100 पे आए तो 100 पे अगर आप देखोगे तो इंटेंशन टू कॉज डेथ तो था नहीं। ठीक है, सेकंड क्लॉज भी नहीं लगेगा। सेकंड क्लॉज क्या कहता है, स्पेसिफिक बॉडली इंजरी की। यहाँ पे स्पेसिफिक बॉडली इंजरी तो मैं दे नहीं रहा हूँ, मैंने तो ऐसे कैजुअली शूट किया है, मुझे नहीं पता किसी के सर पे लगेगा कि हाथ पे गोली लगेगी। ठीक है, लेकिन नॉलेज तो है ना, नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड तो है ना। तो यहाँ से अब हम सीधा फोर्थ क्लॉज पे आएंगे, मर्डर के 101। अब जो इतने पास में ये जो 5 लोग खड़े थे, क्या मैं इनको फोर्थ क्लॉज के अंदर ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज दे वर ऑल स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर, because they were standing close to each other, the probability of getting shot by my bullet is very high. अगर वो दूर scattered होते तब 3 में लग जाता, तब 3 में लग के 4 में नहीं लगता, क्योंकि वो imminent और एकदम all probability will not cause death। तो यहाँ पे डिग्री का बेसिकली फर्क है, आप समझ रहे हो? It will totally depend upon the circumstances of the case, it will totally। ठीक है, अब इसका जैसे एग्जाम्पल, आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल ऑन दिस। बेसिकली अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए, यू गाइज कैन ऑल्सो आंसर इफ यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड। सपोज करिए देयर इज अ पर्सन, ठीक है, हु हैज पुट अ टाइम बॉम्ब। एक पर्सन ने क्या किया, व्हाट ही हैज डन इज दैट ही हैज सेट अ टाइम बॉम्ब इन अ नर्सिंग होम और इन अ हॉस्पिटल जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, एंड व्हाट ही डिड वाज दैट ही फिक्स्ड अ 3 मिनट ऑफ टाइम। 3 मिनट का उसने बॉम्ब में जो टाइमर है सेट किया, एंड आफ्टर दैट व्हाट ही डिड वाज दैट
कि he told everybody that you guys you all are having 3 minutes of time, if you guys want you can escape, ठीक है। अब ठीक है, अब मान लो कल को बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता और इतने लोग डेथ कॉज हो गई। अब आपको इसे एग्जामिन करना है, तो सबसे अब क्योंकि यहाँ पे होमिसाइड की बात है, किलिंग की बात है, अ पर्सन हैज किल्ड अनदर पर्सन, तो अब आप सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड में जाओगे। कल्पेबल होमिसाइड में फर्स्ट क्लॉज में देखोगे कि क्या इंटेंशन था। अब देखो यहाँ पे हम ये एट्रीब्यूट नहीं कर सकते उसका इंटेंशन था मारने का, बिकॉज ही हैज गिवन टाइम टू एस्केप फ्रॉम द प्लेस। अगर वो बॉम्ब लगा देता और किसी को नहीं बताता कि मैंने बॉम्ब लगाया है, तब हम फर्स्ट क्लॉज में ला सकते थे। आप समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो अगर उसने तो बता दिया कि भाई मैंने बॉम्ब लगाया, यू गाइस आर हैविंग 3 minutes, यू कैन एस्केप द स्पॉट, ठीक है, तो इंटेंशन टू कॉज डेथ तो नहीं कहेंगे हम लोग, ठीक है। बट क्या अब हम देखेंगे फर्स्ट में नहीं लगा, तो अब हम सेकंड में आएंगे। सेकंड में क्या है, स्पेसिफिक बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ। तो क्या यहाँ पे जब बॉम्ब फटेगा तो आपको पता है किसका क्या मल्टीपल इंजरीज जिसको होने वाली है, मतलब इतनी सारी मल्टीपल इंजरीज होगी, आपको पता नहीं किसी का हाथ पे चोट आई, किसी सर पे चोट आएगी, कहीं इट समबडी विल ब्लास्ट ऑफ, है ना, ये तो आपको पता नहीं है, तो सेकंड क्लॉज भी नहीं लगेगा। सेकंड क्लॉज लग ही नहीं सकता क्योंकि स्पेसिफिक बॉडी इंजरीज की तो बात ही नहीं हो सकती जब बॉम्ब फटेगा, मल्टीपल इंजरीज होंगी। अब थर्ड जो क्लॉज है, बेसिकली थर्ड क्लॉज विल बेसिकली थर्ड क्लॉज जो है, थर्ड क्लॉज इज टॉकिंग अबाउट द नॉलेज, बट नॉलेज तो उस पर्सन को है ना, नॉलेज तो है ना भाई, तुम कल को बम लगाए हो एंड आफ्टर 3 minutes इट विल वेंट ऑफ, ठीक है। सो द नॉलेज इज देयर कि भाई जो आप एक्ट करने जा रहे हो उससे डेथ विल कॉज दिस इज सच अ ग्रेव एक्ट। अब क्योंकि 3 में अब आप गए, ठीक है, 103 में आप गए, तो 103 के करस्पॉन्डिंग फर्दर एग्जामिनेशन किस में करोगे, 101 क्लॉज 4 में। अब 101 क्लॉज 4 में आप देखोगे क्या ये एक्ट इमिनेंटली डेंजरस है कि ऑल प्रोबेबिलिटी डेथ कॉज करे, तो यहाँ पे आंसर है ऑब्वियसली, क्योंकि इमिनेंट डेंजरस है ना, जैसे मैंने इमिनेंट डेंजरस के लिए बताया आपको, जो कॉन्सिक्वेंस होने वाला वो इमीडिएटली हो रहा है। 3 minutes is something which will imminently cause the death, in 3 minutes people will be dying, ठीक है, और इन ऑल प्रोबेबिलिटी। अब इस पे आते हैं, अब जैसे मान लीजिए नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विकलांग होंगे, जो सो रहे होंगे, वो तो भाग नहीं पाएंगे, है ना, they will not able to escape it, तो his act is imminently dangerous and in all probability they will be dying। जो डिग्री है उनका मरने का that is very high, तो he will be charged under murder, he will be charged under section 101 clause 4, which we have started traveling from section 100 clause 3 to section 101 clause 4, so they will be charged under, basically he will be charged under murder। सिमिलरली अगर आप सोचो कि आप किसी व्यक्ति को हाथ से बांध के, हाथ और पैर बांध के आप उसको सीलिंग से लटका देते हो, ठीक है, और आप कहते हो कि मैंने रूम में बम रखा है एंड आफ्टर 10 minutes इट विल एक्सप्लोड, ठीक है, तुमको भागना है भाग जाओ। अब ये कौन से क्लॉज में आएगा, फर्स्ट क्लॉज में आएगा कि सेकंड में आएगा कि थर्ड में आएगा? ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्लॉज में आएगा, क्योंकि आपने उसका हाथ पैर बांध दिया है, देयर इज नो वे ही कैन एस्केप, तो इसका मतलब आपका इंटेंशन ही था उसको मारने का। आप समझ रहे हो? सिमिलरली आपने बॉम्ब लगाया, आपने किसी को नहीं बताया, आपका 100% इंटेंशन था किसी लोगों को मारने का। आप समझ रहे हो? तो लाइक दिस यू हैव टू basically bifurcate, and the last is, I'll just conclude in 5 minutes the session, and the last is without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी ने डेथ कॉज किया है, अब ये लाइन में आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू विद सम एग्जांपल्स, कि आपने किसी का डेथ कॉज किया है विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर इंकरिंग रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ और सच इंजरी अफोरसेड। तो अगर आपने के पास कोई, देखिए ये उन सारे कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहा है, जैसे बहुत बार होता है ना, कुछ कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहां पे दूसरे को रिस्क उठाना पड़ता है किसी और को मारने का या फिर उसे इंजरी करने का, जो कि सफिशिएंट हो डेथ कॉज करने के लिए, ठीक है। अब जैसे इसको समझने के लिए यहाँ पे आपको कंप्लीट डिफेंस तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपका केस मर्डर से हट के कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर केस है दैट इज बेस्ड ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ इट। जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज अ लेडी, ठीक है, हु वाज हैविंग अ स्मॉल चाइल्ड,
ठीक है, who was having a small child. अब क्या हुआ कि the husband of that lady is very aggressive and he usually on a continuous basis he used to beat her. ठीक है, he used to beat the wife. अब क्या है कि अब she has been exploited for from so long कि अब what happens is that कि one on a very fateful day what happens कि वो जो husband है आता है and he gives a very bad stare to the wife, to his wife, and he sits for the dinner, and the wife asks a question to him कि can I go to my mother's place for 2 days. तो husband reply में कहता है, that is based on the true fact, that is I'll just tell you the name of the case. और husband यहाँ पे कहता है कि let me finish the food first, then I'll tell you the answer. मतलब he just tell this in this manner कि मुझे खाना खाने फिर मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है. अब what happens, she gets panicked. She basically gets panicked because of the statement which he has given. अब उसको लगता है कि his husband will beat her. What she does is that she basically she runs from the house, और वो भागते भागते what she does is that, and the baby is there in her arms, what she does is that, is my voice audible? Yes, sir. अच्छा तो ठीक है. Hello. हाँ, sir. Okay, fine. Okay, fine. So what I was saying is that what happens is that basically she just run with the baby in her hand, fine, and what happens, she jumps into a well, एक कुएं में कूद जाती है लेके उस बच्चे को अपने साथ. अब क्या होता है कि obviously the child which was there, the small child, ठीक है, which was there, the child of tender age, the child dies and the woman survive. ठीक है, अब वो वुमेन सर्वाइव कर जाती है, चाइल्ड मर जाता है. ठीक है, अब वुमेन ये देती है एक्सक्यूज कि भाई मैंने तो I jumped into the well because I was afraid that my husband will come and beat me, so I just jumped into the well and in that process the child also died. तो अब यहाँ पे ये बात आती है, क्या ये excuse will be a reasonable excuse which will basically make what she has did, which murder she has called, will it make it to a culpable homicide? नहीं, the answer is no, because यहाँ पे कोई imminent threat नहीं था ना. There was no imminent threat to her. ऐसा तो है नहीं. अगर इसको हम इस तरीके से लेके हस्बैंड पीछे से भागते हुए आ रहा था, he was coming to beat her or to whatever he was trying to do, and out of the fear, ठीक है, she jumped with the baby with her in her hand. ठीक है, यहाँ पे if death was caused, death बच्चे का death cause हो जाता, woman survive कर जाती, here we can say that there is a reasonable excuse. तो उसका केस अब क्या बोलते हैं, मर्डर नहीं रह जाता, कल्पेबल होमिसाइड बन जाता, उसको 105 के अंदर सजा मिलती, ना कि 130 में. ठीक है, बट विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज आप अगर किसी और का डेथ कॉज कर देते हो, रिस्क लेते हो किसी और का डेथ कॉज करने के लिए या उसको इंजरी देने के लिए जिससे कि उसका डेथ कॉज हो जाएगा, then that will not be basically that will not be मतलब that will be condemned basically. ठीक है, so this will be the you can try to understand the last line of this clause 4 of 101 with this particular case. और ये जो केस है, this is the Emperor versus धीराजी case 1940 और ग्यारसी बाई वर्सेस जगन्नाथ. ये जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया है आपको, ये इन दोनों केसेस पे बेस्ड है. ठीक है, so you can use this as a reference when it comes to the last line or the last clause of the part 4 of murder, that is section 101 basically. ठीक है, चलिए एक और केस, एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं and then we'll wind up. Basically what will now I'll just give you a fact of the case. If you want you can answer, if you guys can answer. ठीक है, मान लीजिए there is a person called A and what he does is that A is a tantric. ठीक है, he is a tantric. What he did is that he beats B. ठीक है, अब A क्या करता है, B को बीट करता है. Why he beats B? ताकि अब what he says that कि B is possessed with some ghost, उसमें कोई आत्मा चढ़ी हुई है, and for that he says that he will beat B so that the ghost will get away. Ultimately he will be I mean without any possession of some spirit.
ठीक है. सो व्हाट ही डज इज दैट कि अब उसने क्या किया, उसको खूब मारता है, ठीक है, और उसके सीवियर ब्लोज उसको देता है, और जिस ब्लोज को देने के चक्कर में व्हाट हैपेंस इज दैट द पर्सन डाइज बेसिकली, ठीक है. तो बी डाइज बिकॉज ऑफ द सीवियर ब्लोज गिवन बाय बी. अब अगर आप इसको अब आप ये होमिसाइड को चेक करोगे सेक्शन 100 के अंदर, तो अब सेक्शन 100 के अंदर अगर आप देखोगे तो पहला क्लॉज कह रहा है इंटेंशन टू कॉज डेथ. यहाँ पे देखो इंटेंशन तो है नहीं कॉज डेथ करने का, वो उसको मार रहा था बिकॉज नॉट टू कॉज हिज डेथ, ही वाज बीटिंग हिम जस्ट एज टू ब्रिंग आउट ऑल द इविल स्पिरिट्स व्हिच बी इज बीइंग पोजेस्ड विद. ठीक है. तो अब क्या व्हाट हैपेंस इज दैट कि अब क्या सेक्शन 100 की क्लॉज 2 में आएगा ये चीज? बिल्कुल, सेक्शन 100 की क्लॉज 2 में ये आ सकता है बिकॉज यहाँ पे इसने स्पेसिफिक बॉडी इंजरीज उसको दी है, उसको जो मार रहा था, सीवियर ब्लोज उसने मारा उसके पे. ठीक है. तो अब यहाँ पे ही विल बी चार्ज अंडर क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 100. अब जब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 100 पे चार्ज होते हैं तो हमको दो क्लॉज देखना पड़ता है मर्डर का, क्लॉज 2 और 3. 2 तो देखिए उस सारे केसेस में लगता है जहां पे जैसे आपका सोलन स्प्लीन है, जहां पे पेक्यूलियर सिचुएशन है, तो 2 तो लगेगा नहीं, 3 लग सकता है, क्योंकि 3 में कह रहा है कि सफिशिएंट बॉडली इंजरी है, सफिशिएंट है इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर्स रिपोर्ट. तो अगर डॉक्टर कहता है यहाँ पे 3 में कि हाँ भाई जो इंजरी उसने जिस हिसाब से मारी, मान लो लाठी से मारा है उसने, 50-60 ब्लोज मारे हैं, और डॉक्टर को लगता है दैट इज सफिशिएंट इन एन ऑर्डिनरी कोर्स की दैट इट विल कॉज द डेथ, देन ही विल बी चार्ज्ड ऑफ मर्डर. आप समझ रहे हो? सो दिस कैन बी ऑल्सो डन. So I hope so. आज का सेशन you guys had some I can say थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. So you can just give your feedbacks if you think you had learned something new. Sir. Yep. A very good evening, sir. Good evening. I have doubt that how would we consider a hit and run case in such scenario? Would it be culpable homicide amounting to murder or not amounting to murder? See, again, I have to then just dwell into the death caused by negligence. So that will be something which will be again it will be taking a lot of time. What you can do is that I'll just share my email ID to you, okay, to everyone. Fine. So or else my number. Okay, what you can do is that you can just send me your queries. I'll definitely I'm a little bit exhausted also at the moment, so I'll definitely revert back to you all your questions. Fine. Sure, sir. Thank you. I'll definitely revert back to you all. So I hope the sessions the session would have some impact on the knowledge which you are having earlier. So so I think the session has already extended to yeah, I'll definitely share the PPT as well. Any of the I'll definitely give the PPTs to anyone who is wanting it. I will be happy to share it. Provide your email and phone number too, sir. It will be very helpful for me. Yeah, I'll just write it there. Okay, I'm just writing my email ID. सर मेरे को एक डाउट था. जी बताइए. सर culpable homicide amounting to murder and murder में डिफरेंस मेरे को नहीं समझ आ रहा अभी भी. नहीं समझ में आया डिफरेंस? Culpable homicide amounting to murder. आपको मैं हाँ, मर्डर. culpable homicide amounting to murder आपका मर्डर हो गया, और बताइए. और बस इतना डिफरेंस. अच्छा, मर्डर और culpable homicide amounting to murder is same thing. देखिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए. देखिए culpable homicide एक चीज है, ठीक है, culpable homicide एक चीज है, मर्डर एक चीज है. culpable homicide not amounting to murder culpable homicide ही है. हाँ जी. और culpable homicide amounting to murder है. ओके ओके. आई होप सो समझ पा रहे होगे. हाँ ठीक है. सर आप पीपीटी शेयर कर देंगे? हाँ definitely. I'm just writing my email ID to you all. This is my email ID, right? So you can just write. You can just write this. Write your queries on this email ID as well. And so you can just connect me on Instagram as well.
So I'm on the Instagram as well as I will not willing to share my number, but you can just have this as well. I will just share this number. Okay, sir. Okay, sir. Tell me your Instagram ID. Actually, can I? If I Yeah, have it's figured out, I can Better Call send you. Gotham. I'm not having the link at the moment. It's Better Call Gotham. So can we text you on LinkedIn? I guess that's more professional. Yeah, that's more professional, but actually I'm not using it at the moment. So meanwhile, I'll be just having an idea, like updating some of the things in Instagram. Meanwhile, you can just message me on email, or it will be on Instagram. Okay, sir. Okay. Better Call Gotham it is. Fine. So you can just okay. This is my Instagram ID. Thank you, Nikhil, for just posting it. It was not. So this is my Instagram ID. You can just message me, drop me a message on this, because what happens is on email, the thing is that sometimes it got missed. So Instagram at least will be having the messages which I can directly give answers to. Fine. So I hope so you had learned something new with this particular topic of it. See, what we can do in future is that we can have some workshop on it. We can have some of the workshop, and that too, it can last for days. It cannot be done in 2 hours or 3 hours, because it will take a week if you want to learn it in a very professional manner, step by step. So it with this case laws as well as with the Supreme Court's judgment as well. So I'll better suggest that we can meet in future, and we can just have more of such classes in future. And I want to say that there are some workshop on BNS which Legal Vidya is already offering, and I think because of Raksha Bandhan and all, they are giving it at 50% discount. So if you want, you can just opt for this 3 days workshop on BNS that has been provided in the link in the website. So you can just go through it and just check it out. And in future, definitely we can be in touch, and we can just have more sessions like this in future in more other topics. Okay, so I'll just take your leave then. I hope it was a wonderful session with you guys. And regarding the questions, we can have that on the other platforms, right? So Thank you, sir. Thank you, Nikhil. Thank you, everybody, for the Okay, sir. Thank you. for attending this session. Thank you so much. Thank you, sir, for the session. Thank you, sir. Thank you, So everyone. now I would like to call Mr. Rishabh Raj for the vote of thanks. All good evening, participant. Good evening, sir. On behalf of Legal, in my heartfelt thanks to our esteemed speaker, Mr. Gautam Jaiswal, sir, for taking time to share your valuable insights during session. Knowledge on the subject that not only depend our understanding on culpable homicide and murder, but also made difference of both culpable homicide and murder concept more accessible and engaging for our participants. Once again, thank you so much. We hope to collaborate with you in future. Like, sir, as you said in workshop, we definitely organize a workshop with you, sir. Also, a special thanks to our friend and Rutsa Ahmed for hosting this session. Thank you so much, everyone. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you for being with us. Thank you, man.